contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and comma an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions
of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date.
And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing for on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two,
they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number 3, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These 3 things are important for my arguments. IPE was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said
we are not being allowed to participate in the elections. To simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word malafide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is malafide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such malafide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come. If we can just start with 14 members. Destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर, ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी
एक 12 ही है जी। फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय CEC वो भी 2/12 को ही होगी, और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी। तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ECP में जी। ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन जी। somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो, आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे न्यू आई है कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे। तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीज़ों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था। बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन। जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते, और फिर सारा दारोमदार आपके अपने PTI के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आई गॉट दैट। यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling your mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some, oh, this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी, ठीक। So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था। They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह। So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly, but for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी। आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? We know what a symbol is जी। Now let's, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं। At least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं। But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol तलवार। फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया। फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today,
Was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूँगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. नहीं, I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. So you can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court 66.
It is 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, maybe I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश करने के जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए, फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना. Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना. वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए पहले, आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22. पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1. नहीं सॉरी, पेपर बुक नंबर 3. पेपर बुक, ये पेपर.
Your Lordship want me to read at which para? Para 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar. And nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of Election Commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017.
Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन के आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल को क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस हैज आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन एग्जैक्टली सर द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है. क्रॉस से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है. तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट. आई एम. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship. What I'm exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट है, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं. तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो अगर आप कोई पॉइंट आउट किया पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आपको. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूं मैं आपको.
क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे, जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा 200 कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। कमीशन में तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे है। थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर, हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना फिर तो, मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। तो फिर कैसे रोल नहीं है फिर वो, फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप. Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंपल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए. ये सिंपल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पेशावर क्या, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से. हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है. तो मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल. सिंबल तो लिया हमसे, पेशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना. नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं. इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले. क्वेश्चन इज, कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें. आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी. बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है. फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए, वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया. परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको, वो हमारे सामने आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर से आगाज करें शुरू से. मैं शुरू से कर रहा हूं सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल. ये तो ये कहने से तो कानून का लेट अस स्टार्ट सर. लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। Right, sir. शुक्र है। So let us start with sir the constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is Article 218। ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose, and जो relevant उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई। 2183 में जी जी, और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219E में, ठीक है। सो ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament। So your lordship वो पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस। So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election? नहीं, 219E, 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us। So 218(3) does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है। Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election all it says is exactly वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे। अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को। वही मैं दिखाने जा रहा था सर, बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 17 का पार्ट था। बहरहाल उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक। That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है। ये सारी बातें सिंबल ये चीजें ये आएंगी एक्ट के जरिए आ रही हैं। So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं। Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सिर्फ 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन जी, पढ़ दीजिए। 209, a political party shall within 7 days from the completion of the intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? 2091. मगर 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? से 207 पढ़े। मैं मैंने आपको कहा ना, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है।
वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट 207। या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी है, मैं भी आता हूं सिर्फ नहीं, देखिए फिर वो आप मौक़िफ़ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं, वो फिर आपका एक अलग मौक़िफ़ है। नहीं, मेरा आप तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है, मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है सर दैट अंडर द लॉ मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन कमीशन जी ये 207 कहता है जी, बिल्कुल कराना है, मैंने तो नहीं कहता है, नहीं, मैंने अंडर द लॉ कराना है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर मेरे इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया कानून ने उसमें कि वो उसमें प्रूव करे। नहीं, इलेक्शन सर मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है। दैट इज माय केस बिफोर दिस कोर्ट। वन ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़ें उसमें पूरा मैकेनिज्म मैं पढ़ रहा हूं सर, मैं वही पढ़ूंगा। तैयार नहीं है वो तो कह रहे हैं कि आपको बुला सकते, देखते ना, इसलिए मैं इस मौक़िफ़ में देखने जा रहा हूं। 209 पढ़ रहा हूं पहले मैं, 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं। 209(1) पढ़ते हैं दोबारा। सारा जुरिस्डिक्शन का ही तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। जी मैं क्लियर, आप बराए करम 208 पढ़ लें, 208 भी पढ़ लें, 208 पढ़ लेते हैं, देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना। 207 से शुरू करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चलें सर, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200 जी, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना। फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऑलराइट ठीक है। सो मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं सर। जी करें। इफ योर लॉर्डशिप सेज a political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ठीक है, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's a law of Pakistan. But what I mean is that this you not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. अगला पढ़ लें 208 पढ़ लें। सिर्फ पहले 200 कमेंट कर दूं इस पे 207 पे। 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कन्वीन नहीं की जनरल मीटिंग तो वो उसका सिंबल रिफ्यूज कर दे। That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप। 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party, but it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुआ है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं सर। एक चीज लॉ में क्लियर आ गई, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections। वो उन्होंने लॉ ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते जी। वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए, इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी बड़ी बात नहीं है उनकी। वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर पढ़ेंगे ना, वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्हें कराए लेकिन इरेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे। हाँ। बट दे आर नॉट to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है। I can't say कि women are not allowed, I can't say minorities are not allowed। 14 लोग हैं, इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी, ये फैक्ट। मैं वो कहते हैं, मैं तो पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत, but question is if नहीं दी, they should have gone to the civil court.
all members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है civil court in तुर्बत। जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात, ऐसे आपने कह दिया ना गो टू सिविल कोर्ट, करेक्ट, ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे। राइट, सिविल कोर्ट इन तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा। आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए। अगर सपोज देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो, ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है भाई, हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट कर सरांखों पर, ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं। हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना, अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। 3, all members of the political party। अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा। जी, मैं उस पर आता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं। हम देख रहे हैं कौन सा अदारा, मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है, तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने। प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस। जी, अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल, अब इसका इसी 208 में जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम, ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ECP को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा। अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड, 2 लाख रुपए की, जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी, पढ़ी ना, सबसेक्शन 5 में ही है, सबसेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show, यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, not irregularity but करे ही ना, a show cause will be issued। उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सॉरी, 5 subsection 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered। आपका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, वो रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं। अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया, अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके। साहब अगर आप इसको पढ़ें दोबारा गौर से 5 को, जी, विद इन टाइम, जी, तो ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में करा, उन्होंने 2 लाख की पेनल्टी लगा दी, ठीक है। यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, फेल्स टू कंडक्ट सर, हाँ, विद इन टाइम। देखिए, वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन
देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है। तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं। ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा। तो आगे आ रहे हैं ना जी, चले आगे देखते हैं। 208 में नहीं आ रहा। आप 209 पढ़िए पहले। अब 209 पढ़िए, क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना। अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना। तो वो 208 वाली बात खत्म है, बिल्कुल इलेक्शन में तो खत्म हो गई। दैट इज माय पॉइंट। 208 वाली बात खत्म है। उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं लगाया, 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया। So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है ना, ठीक है जी। अब आप 209 पे आ जाते हैं। A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना। पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो बेस्ट गौहर। नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन। नाम क्या ये है? तो इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो तो बात की बात है ना, उसमें आया है। जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो नहीं देखिए जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है हर चीज आती है इलेक्शन पे जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दें, बाबू हरा दें उसको ना। एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका भी जवाब हमारे ज़हन में जो बात है बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूं। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है। किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद कानून वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को, प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। दिखा देना कहीं लिखा हुआ ऐसी बात, वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ECP के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ECP का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है,
और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है, और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिस्डिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 2 and 5. I will sir, 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are bound by the law because section 5 is not 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now इलेक्शन को कमीशन को तो इख्तियार है। Constitution of your own party के ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं? फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये कंडीशन। सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये पाकिस्तान इंग्लैंड आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमें समझ तो आए बात को। तो मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए आप, नोट कर लें। कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिस्डिक्शन नहीं, just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है, 209 की non compliance 215 में मेंशन है ना, if you will read 215 पढ़ लेते हैं ना, पढ़ ले jurisdiction issue है। खत्म तो कर लूं 209 खत्म कर लेते हैं पहले, 209 वो खत्म कर लेते हैं ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? किस पे? हाँ, ये कौन से पेज पे? ये अभी पेज नंबर है, मेरे पास नोट है। किधर है, कौन से पेज? This is at page 65 जी। 65 के लेटर और ये सर्टिफिकेट पेज 66 पर। If your lordship turn to page 65 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म itself, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. नहीं, certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ, वो पढ़ते हैं। 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए। ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है। अब 2 पे आते हैं जी। लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना। अब 2 पे पढ़े। 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में, तो 5 साल से पहले करा दिया ना सर। 5 साल होते थे, 22 को होगा ना जी। 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13/22 को हुआ ना सर। 12 जून 2022 को करा दिए ना, 3 दिन पहले, बिफोर द डेट। अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे हो सिलेक्शन को, नहीं वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पहले आगे बढ़ते जी, तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई। लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया। The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया, जिसको लगा ही नहीं सकते ना। अब ये दिखाई नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं। सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना। एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वो तो जब कास्ट होंगे। देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया। देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है। वो तो
कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े, या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। अगर छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है या कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, आपकी अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड हो सकते हैं, मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकेंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार्स एट बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज्ड जी, ठीक है जी, वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज्ड हों, ठीक है। मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान जी, सब हो गए ना पूरी, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा। मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। सर ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता, छोटा इसके साथ ही है। कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो ये सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर, एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं। PTI has one huge leader which is इमरान खान। अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रॉब्ली अपोज दैट। नाउ वी कैन नॉट इंसिस्ट। खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रोबेबली जी, आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रोबेबली ऐड करके जी। तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद नहीं, अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है जी, फिर ये आमरियत है। अगर नहीं सॉरी, नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो, मगर अगर आप कहें कि वो जबरन कर रहा है किसी से, जबरन हो रहा है ना, क्योंकि 14 लोग हमारे सामने कि जी हमें इलेक्शन तो लड़ने दें, हम हार जाएं बेशक। उनका जो प्रूफ है, उनका जो एविडेंस है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सेकंड के लिए अज्यूम करें, वो दिखाइए हमें, अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए, दिखाएं पहले ना, इस बात को खत्म कर देना। एक सेकंड के लिए जरा सा पढ़ लीजिए ना, क्योंकि वो पहले अज्यूम से मेरा जवाब तो देने दीजिए। अज्यूम कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि कोई नहीं आया, जेन्युइनली नहीं आया, दैट डज नॉट मेक द इलेक्शन वॉइड, क्योंकि आई कांट नहीं, आई वुड नॉट, आप उसको वॉइड कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा, जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया अनअपोज, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा पॉइंट नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखें हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, आधी पौनी लंगड़ी लूड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए चीजें। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए, आपके लोग अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। आपको उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सिर्फ उनको एक दो ले भी गए तो क्या मसला हो जाएगा? वो तो खैर जो भी कह दे, कोई उठ के आके कह दे, या तो आप कहें वो कोई गैर आदमी है, दूर से सड़क पे चलता आ रहा है, बिल्कुल गैर आदमी लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी कल हामिद खान से फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया। क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. मैं तो when did you join the party? मैं तो when did you join the party? मैं तो बहुत recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gore join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ रहे party. ना आप
देखें पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना, या तो मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. कोई पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे जी। वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था। नाम बता देना, पीपल्स पार्टी में। तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें। हमारा कभी नहीं। सर आप उनको देखें, देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कम से कम बर्दाश्त तो रखें। उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में। अब दिखाएं, मैं हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दिखा दें। मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिया, दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का, दे दीजिए जी। वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट टर्मिनेशन लेटर। तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए किस पेज पे है टर्मिनेशन लेटर? टर्मिनेशन किधर है? टर्मिनेशन ही हमारे साथ है इस पेज पे। अच्छा मैं मेंबरशिप, आप पहले पेज दिखाइए ना, एक बात तो खत्म करें हम इसको। टर्मिनेशन नहीं है, फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है इसमें नहीं है सर, टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना, या अलग से दे रहे हैं जी। हम कल पेपर बुक सर, आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग आपको पेपर आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं। पेपर बुक लग ले आए नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट, बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है। करेक्ट सर, टर्मिनेशन कमिंग बैक, नहीं कमिंग बैक नहीं, शो अस फिनिश दिस पॉइंट, व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की, मैंने आपको भेजा था सर, वो नहीं, वो तो पुराना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है, हमारे मेंबर कैसे बनते हैं, सेक्शन ये पढ़ा 201, दिस इज हाउ मेंबर्स आर टू बी फॉरवर्ड। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court। राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है। उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा। दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। इफ यू आर नॉट गिविंग मी अ क्लियर आंसर, आई विल प्रिज्यूम that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा, वेबसाइट इज नॉट एविडेंस। नो देन देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आ जाइए, नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज। आई एग्री सर, अच्छा फिर आई कांट गेट दैट डॉक्यूमेंट, आप रिज्यूम कर लीजिए। नहीं अब आप दूसरी बात देखिए, मैं 209 पे आ रहा हूँ। नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए, 215 है, नहीं 205 पढ़िए जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से। The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है। Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a political party. It's you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ठीक है सर, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. Ali Zafar Saab, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है, ठीक है, I appreciate that. Some people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole
boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209, एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, कह रहे हैं हो गए, मान ली उन्होंने बात नहीं. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दोनों बातें हाँ, मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स, माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें, सीरियसली देयर मस्ट बी सम एविडेंस. आप कह रहे हैं सबूत दें, हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत दें, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago. वो ऐप से देख के give him more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3. The commission shall, within 7 days from the receipt of the certificate of a political party, under subsection 1, publish the certificate on its website. So, in effect, 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी बिल्कुल. Easily पढ़ के, then this is the core issue, whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. Okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election
to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged. Whether the values of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under Section 209. I agree with this section. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. जब आपकी मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर आप पूछें कि कब ब्रेक करेंगे. मतलब I'm good whenever you want to. 5-7 मिनट करना चाहिए. थोड़ा सा और कर लें. लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of symbols. वो skip करें, हम 17 पे आ जाएं. 217 पे allocation of symbols, because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात जी. If the political party complies with the provisions of this act. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली ज़फ़र साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा. हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं. 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. सर लेट अस नाउ, देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए. फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई, एक दूसरे से बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया सब कुछ.
तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं। बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस। ठीक है जी, ये सर। अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स, अली जफर साहब एक मिनट जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है, तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप जरा, कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, ये आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk। कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सिर्फ नॉमिनेशन पेपर? जी जी योर ऑनर, फाइल कर नहीं, ये जरा ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें। क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर जी, अच्छा वेबसाइट है, मुझे बताएं। ये उनसे वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइट खोलें, ये मैं आपको सिर्फ एक CMC, एक सेकंड आपकी वेबसाइट पर देख लेते हैं। बोलो नॉमिनेशन फॉर्म ओके नहीं है ना, फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन। अब हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए, वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दी है सर, ब्लैंक फॉर्म जो इस पे तो पेजिंग नहीं है। कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हैं 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, अगर 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, वो वेबसाइट पे नहीं है आपका। एक आप ना बोलिए ना, टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द वेबसाइट, ये कह रहे हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स। जी वो ये कह रहे हैं कि जो अली जफर साहब, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी, जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं, स्पेसिमेन फॉर्म, कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है, खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने, इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे, और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें, अभी खोलिए, आपके सामने दिखा दें वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस जगह इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन, आपका जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू हो, ये सही बात है, उसी दिन नॉमिनेशन डालना है जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी वहां से क्वेटा वाला ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, दे आर फुली अवेयर ऑफ वेयर द ऑफिसेज आर, लोकल ऑफिसेज आर। हम देखें, जबानी बातों पे नहीं जाते, तो आप इतने वाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कोई बैकिंग, कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। तो वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्ट करो। वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे, फिर वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। नहीं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन। नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव, आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा हूँ जी, ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है जी, इशू हुआ है जी, और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिया 29/11 को ही जी, और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद जी। सो देयर वर 3 डेज, और किसी को भी रोका नहीं हमने। दे वर आल्सो अवेलेबल सर। फीस कितनी थी? वसूल जो है ना वो नहीं लिखा। फीस कितनी? 50,000 50,000 जी। हाँ 50,000 अब देखिए आप 50,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए
कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी आपके शेड्यूल में। ये बैंक में जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हमने प्रोसेस। उसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,012 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये। मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए प्रोसेस जो है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको आप प्लीज, क्योंकि देखिए लॉ के मुताबिक चलना है। वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, आप देख लें, आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, अपना शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है। आपसे बात हो रही है ना, इट्स मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर तो लेट अस स्टार्ट विद। देख लें साथ खड़े में आपके, बेशक देखें ये तो पेपर आपके हैं, हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं पेपर। तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी। अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी, 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई। एक सेकंड यार रुक जाए सर प्लीज, वन रुक जाए सर। 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you, right. You can answer that. ठीक है। Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है। For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म। जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है, दोनों दिन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को, ठीक है। अपील रिजेक्ट हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली, अपील भी डिस्पोज हो गई। नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है। पोलिंग डेट 2/12 है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय CAC 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12, ठीक है। ये बताइए इसमें फिजिकली पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना, आप हर सूबे में वहाँ पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए, कि सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं, पंजाब के पंजाब में, लाहौर में हाई कोर्ट्स में बनते हैं ना। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और फाइल इस्लामाबाद में होनी है, इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पिशावर में हो रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर देखें तो हम ये कहें कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत जारी है। दूसरी जानिब मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहिए PSDP का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। अब होगा कि जनूबी पंजाब के जो जद्दोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम कारकुन
तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत की इलाज, जैसे हमने सखर में CVD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मज़दूरों को बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे, ताकि वो खुद वो रोज़गार के मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं तो कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सके। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जदोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूँ, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफ़रत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। पहले था इमरान खान लाडला, आजकल है नवाज शरीफ और बिलावल कब हो गए? आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा तो ये जो मेरा भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ देके हमें मेरा आपकी जात से है, बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह। आपने कहा कि मिलकर चलेंगे, पुरानी नफरतों को भूलना है। नजरियाती तौर पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, आपके फादर भुट्टो साहब या आपके खाना, उनकी जो लेगेसी थी जिसको लेकर आप चले, क्या आपको इतनी जम हो गई है कि एक तरफ राइटिस्ट हैं और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट हैं, तो अब इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नजरिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात हो रही है, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा? देखिए, आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नज़रिया पे अमल दरामद करें और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नज़रिया और बाकी सियासी जमातों का नज़रिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। मुमताज़ भाई कौन है? मुमताज़ नियाज़ी साहब। मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, ख़ास तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा पार्टी को उठा रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आप कोalition गवर्नमेंट में बैठने की पसंद करेंगे या अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे?
अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं, और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सकें। जो इस वक्त मुल्क में सियासत में जो नफ़रत और तकसीम का सियासत है और जो पोलराइजेशन और पार्टिज़नशिप एक अरूज पे पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि वो बुखार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ सकती है। अगर PTI का हुकूमत किसी न किसी तरीके से बना तो उनका एक ही काम होगा कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेना है। और मियाँ साहब ने आज से दिखा दिया है, अब से दिखा दिया है कि उसका यही इरादा है कि अगर हुकूमत में आया तो सियासी इंतकाम लेना है, उन सब से पूछना है, उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। हम ही हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर सियासतदान का काम ये होना चाहिए कि हम कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे, कैसे बेरोज़गारी का मुकाबला करेंगे, कैसे गुर्बत का मुकाबला करेंगे, और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, प्लान है। देखो, जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस है, इसकी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हमारा ये जदोजहद रहा है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। और खान साहब का ये एक नया मुतालबा है जो अभी सामने आया है, वरना हर इलेक्शन में खान साहब का कोशिश ये रहा है, और पिछले इलेक्शन में उसका ये कोशिश कामयाब हुआ कि धांधली करवा के उनको मुसल्लत किया जाए। हम समझते हैं कि जो तरमीम, जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेके 2013 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते। आपके दोस्तों ने, रावल साहब, आपके दोस्तों ने बात की है सर, मुल्तान से आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गया, इसको कहां तक जाता देख रहे हैं? सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सराइकी सूबे की बात करती है, सराइकी सूबे को मंशूर में शामिल किया। आपने खुद इतराफ़ किया कि गिलानी साहब के दौर में सारा सिलसिला हुआ। आज जो टीम आपके साथ शामिल हो रही है, इसका बुनियादी मोटो ये है कि इस खित्ते को इसका हक मिलना चाहिए। तो हम क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में अगर कहें आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे वसेब को अलहदा सूबे का दर्जा देगी? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपने वसेब को हक दिलवाया जाए, और ये जदोजहद जैसे आपने कहा गिलानी साहब के दौर में हमने सेनेट में भी करारदाद पास किया, और अब यही वजह है कि हाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया, नॉट जस्ट रेजोल्यूशन। आजकल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम तो पूरा पार्लियामेंट एक्ट पास किए थे, सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ और उधर से आगे गया। आज भी हम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम पंजाब के अवाम से, जनूबी पंजाब से के अवाम से सबसे ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वसेब के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब ना सिर्फ वफाक में, आप यहाँ सूबा पंजाब में अगर आप मुझे हुकूमत बनाएं तो फिर मैं असल मानों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिशात हैं वसेब के लिए, वसेब के अवाम के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को सरप्राइज देंगे। आवाम अभी तक शशु पानी में है, इवन के सियासी जो लोग हैं वो भी शशु पानी में, पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते।
सेनेट में हर दूसरे दिन जो है करारदाद मंजूर हो जाती है, पास भी हो जाती है कि इलेक्शन लेट किए जाएँ। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इलेक्शन 3 महीने लेट किए जाएँ। फिर केपी में उनके ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें, क्या इलेक्शन हो भी रहे हैं या लेट की तरफ लोग जा रहे हैं या कुछ लोग भागना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो भी चाहे, हम तो इलेक्शन कैंपेन आज से नहीं काफ़ी देर से चला रहे हैं। और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़े रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। वो उनका अपना कसूर होगा। मतलब किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनकी आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीड किया जाता तो शायद उनको उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीड किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि PTI को उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त मांगना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। आपको भावलपुर में हमारा पार्टी का कन्वेंशन है आज। आप सब शुक्रिया पाए मुझे। सर, हमने पहले कभी किसी वादा खिलाफी किया है? पीपल्स पार्टी जो है हमने अगर कायदे अवाम ने रोटी का और मकान का नारा लगाया तो ये 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां की तरह नहीं था। कायदे अवाम ने वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। जो हमारा 2007-8 का इलेक्शन की मंशूर था उसमें हमने अमल दरामद किया, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे अवामी मुआशी मुआहदा के 10 नुकात है मैं वो वादा पूरा करूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम सिर्फ अवाम की जानिब देख रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूँ वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है। 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया। अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई, अब हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपके जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया। चले ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं, दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखाते हैं जी कैश में। किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पे आया नहीं, अब मैं अभी आ रहा हूँ उस पे। लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखें ऐसे, देखिए अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने
खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते हैं आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को, इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये एंजाइटी। तो अब आप इसको एक वो हमें सारे जो हमारी जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है। आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे, मगर फिर वो आपके फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका नहीं करूंगा ये निकलेगा। ठीक है जी, आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस के अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन। अब मैं आपका पॉइंट पे आता हूँ, एड्रेस करना योर फीलिंग के इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पेपर बुक दी है सर आपको, इसमें जी जी दिए ना, जी 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 आपके सामने होगी सर, ये वाली ना जी, हाँ आपने फाइल की है जी, ठीक है। अच्छा, नाउ सर व्हाट हैपेंस इज, मैंने शुरू किया था कि अब 20 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं, तो ये 28 नवंबर को हमारे पास जो पहले जो हमारी एक द वे टू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 इलेक्शंस हैं। एक है चेयरमैन का, वो ब्रेकिंग चेयरमैन का इलेक्शन है, वो सिंगल इलेक्शन होता है कि आप एक 1 against 1, और जो एक है पैनल इलेक्शन। पैनल इलेक्शन मींस कि आप अकेले नहीं आ सकते, आप एक पैनल लेके आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जनरल सेक्रेटरी। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे, वो है ही नहीं इसमें। चेयरमैन का दिखाएं, चेयरमैन, लेट्स स्टार्ट विद द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये इसमें पेपर बुक में कहाँ है चेयरमैन का? नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते हैं एक चेयरमैन का और एक पैनल का। हम पढ़ चुके हैं ना, राइट। हम आपको टेक्निकलिटी से निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। वो अब मखदूम साहब टेक्निकलिटीज में हमें ले गए, वो 5.1.1 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ज्यादा उस पर वो नहीं अहमियत दी जी। फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ वो ले जाना चाहते हैं आपको। अब इसमें तो आपने खुद ही एक ये कटिंग लगाई है कि बाबर अकबर जो है वो सेक्रेटेरिएट पहुंच गए फॉर्म लेने के लिए जी। ये तो खुद उनके जी जी वो आए, तो हमने फॉर्म उनको देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम, दैट इज व्हाई वी शोन इट टू। और वोटर लिस्ट इलेक्शन के तरीकेकार की मालूमात हासिल करनी है अकबर एस बाबर, ये जियो की आपने लगाई है जी। वो आ गए तो इसका मतलब वो उनको नॉमिनेशन पेपर्स अगर चाहिए थे वो ले लेते, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किया। वो तफरीक पे तो नहीं आए जी, वो कह रहे हैं कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने गया, मुझे नहीं दिया जी। अब हम कह रहे हैं दिया, हम कह रहे हैं तैयार थे, से तो क्या होता है ना, हम कह रहे हैं देखिए ना, एक सेकंड ना, आपने जब दिया ना तो 50,000 रुपए की फीस का है, वो नहीं दी उन्होंने। नहीं देखिए ना, उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील, आपके अपने भी वकील साहब, अगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना। नहीं चेयरमैन साहब कुछ और 50,000 रुपए कहाँ है आपकी, जब आप इलेक्शन लड़ने का फॉर्म अगर रसीद नहीं है अकाउंट में तो जमा हुए ना। पहली चीज तो ये सर, इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कब की। मेरे पेपर बुक जमा कराई है जी, तमाम जो कागज कहे थे। किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं, अभी तो ये नहीं, मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया है, 50,000 रुपए नहीं दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने कहा था तलब किया जाए रिकॉर्ड में ECP की वीडियो फोटो कॉपी दे दें जी। इनको हम सुनेंगे बाद में, आपको देख जी, लेट हिम कंप्लीट द आर्गुमेंट जी जी। ये जब तक देख लेंगे आप तसल्ली से बैठ के, आपने नहीं बाद में देख लें, मगर आप अपने कंक्लूड करें। मैं कर रहा हूँ। अब सर हमने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया सर, जो आपके सामने है एनेक्स 5 में, जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि जी अनाउंसमेंट से पढ़ा, जब ये कहते हैं हमें कि आप इलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई, फिर आगे आने जाते सो ऑन सर फर्स्ट एनेक्स 1 देखें अगर, तो 28 नवंबर 2023 इट वाज अनाउंस्ड इन द पब्लिक कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। सो 28 नवंबर 2023 was the first announcement कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact कि elections होने जा रहे हैं। And Annex 2 अगर आप देखें तो the next day
it was announced that chairman kaun hoga PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि ज़रूरत नहीं है कि आप TV media पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज में आया. Then the next on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या? ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as a chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. हमने बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज़ में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they are. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You are an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी. देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, "I never nominated him then." That is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So, Your Lordship, 29th ko phir the next page, Annex 5, is the 29th ko the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And the schedule jo hai sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम ये उसमें लगी हुई कौन से पेज पे काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं. वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो, नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud. I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into details, then you are playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. कच्चा सा कह रहे नहीं जरूरत उसकी. Federal Election Commission. The next page, and then
So these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he become join PTI? PTI कब मुझे बताइए। आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज। 2009। तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए you whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI, ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, elite capture हम कहते हैं, political capture भी हो सकता है और on a political party. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे। ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो, ठीक। That I mean, I fully appreciate what Your Lordship is saying. So I'm taking Your Lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि Your Lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, and not going into the nitty-gritty of it. Now Your Lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was nomination papers की copies हैं? So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager, एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन। So Your Lordship can see कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का। जी, this is his panel. उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया। Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया, no other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है। जी, ये जीता है, ये जीता है। तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक, उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस वो अलग है सर, हर पैनल अलग से आया। इसी पर दिस इज द फॉर्मेट। 91 persons आर इलेक्टेड एंड अपोज, 91 है। करेक्ट। आपने जो इलेक्शन को दिया ECP को, एवरी पर्सन हैज द सेम काइंड ऑफ फॉर्म। नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना आपकी पेपर बुक से। आपने एक उमर अयूब खान, ये सेंट्रल था सर, एक पैनल एवरी प्रोविंस, मगर टोटल नंबर ऑफ अनअपोज कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी। टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल, टोटल पैनल टोटल जी एक पैनल आया, 5 पैनल और उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे, 20 पर उन्होंने 20 बंद हो गए। इसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91। कौन से बाकियों का भी दे देंगे। उन्होंने एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को। ये है सेंट्रल पैनल का। इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते। क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके
पैनल के फॉर्म में आ सकते हैं आप. सो इफ आई वांट फॉर एग्जांपल टू से कि जी मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का लड़ना है, आई कांट कम अलोन. तो ये जमहूरियत के ऐन मुताबिक है सर. ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते हैं ना लोग. अब जैसे बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल, मगर सब इंडिविजुअली फाइल करते हैं. इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है. तो ये कुछ समझ नहीं आई बात. वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, एक सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई. मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है. पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए. आइडियली तो ये होना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक है. नहीं, मैं ऐसी अजीब सी बात है. तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है. 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, इलेक्शन हो गया. सर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ पैनल आता है और उसमें वो आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. पैनल आते हैं, ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो है ना, वो भी नहीं नजर आ रहा. वो भी अभी दे देते हैं. 13 आदमियों का आपने ये लगाया है, जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं. 91 का पता ही नहीं है जो अनपोज है, वो भी आपको दे देते हैं. ठीक है. नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5. एक सेंट्रल और 4 सूबे और एक पैनल हर सूबे से. ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना. अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर. अभी आ रहे हैं. आप दुरुस्त कह रहे हैं. मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर. आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम. मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक. आ जाएंगे थोड़ी देर में. इनफैक्ट आपकी पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है. कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है, अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है. अब ये वाला एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे. अभी आ जाते हैं. मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं. हमारे ECP को सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया, कल फाइल लेते हैं. हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है, ECP के रिकॉर्ड में है. ये हमारे पास है ECP का रिकॉर्ड. I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals. हम उन कहना नहीं चाहते ना, because you are own person. या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है. एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे. इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक. या तो अली जफर साहब को कहें, वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे. वो तो सारे ठीक है. आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना. ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना. अली जफर साहब, आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं. जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं. कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर. ये एक्चुअली होता ही है. गुस्सा सुना है. मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ. वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है. Mr. Ali Zafar, एक पार्टी से मेरा shall we issue notice? Sir, I apologize. नहीं, but if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं. आपसे क्लैरिफिकेशन. We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे. I mean, if he, this says, show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं. मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी PTI के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के. मुझे पता है सारा. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. ठीक है, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself.
myself, in fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand the case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. So we'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, वो half an hour. Time बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So एक minute. Thank you sir. कोर्ट में समाअत के दौरान इस वक्त कुछ देर का वक्फा किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत खाने के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज की ज़ेर सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। PTI के वकील सेनेटर अली जफ़र, हामिद खान और इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस काजी फैज ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। PTI वकील हामिद खान ने कहा कि फैसला पड़ा है, पेशावर हाई कोर्ट ने बेहतरीन फैसला लिखा है। दरियासना हामिद खान के बुलाने पर बैरिस्टर अली जफ़र दलाइल के लिए रोस्टम पर आ गए। उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आज पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन है, वक्त की किल्लत है, इसलिए जल्दी दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन फैसला गैर कानूनी है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। फैसला इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक भी हासिल है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। फैसले में ये कहा गया है, अपडेट कर रहे हैं आपको PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन फैसले गैर कानूनी है। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग से कबल इलेक्शन शेड्यूल का आखिरी मरहला आज मुकम्मल होगा। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के बाद हतमी फहरिस्तें आज आवेज़ा करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से बेशतर हलकों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़हद चौधरी से। फ़हद बताइए। जी बिल्कुल, आम इंतखाब 24 के लिए पोलिंग के दिन से कबल इलेक्शन शेड्यूल में शामिल तमाम मराहिल आज मुकम्मल हो जाएंगे। आज 13 जनवरी है और रिटर्निंग अफसरान की जानिब से आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे और हतमी फहरिस्तें आज रिटर्निंग अफसरान जो है वो आवेज़ा कर देंगे। 19 जनवरी को अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इन अपीलों को निपटाएंगे और 23 जनवरी को हतमी फहरिस्त जो है वो इकलियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की वो आवेज़ा कर दी जाएंगी। जो है वो जारी है सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात के लिए और तमाम सियासी जमातों ने अपने अहम जो उम्मीदवारान हैं उनके टिकटों का ऐलान कर दिया है, उनके हलकों का ऐलान कर दिया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन NA 247 से, मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से, खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 कराची और फ़ारूक सत्तार 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे NA 241 और NA 244। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इंतखाबी रहेंगे।
जबकि अली मूसा गिलानी NA 151 और अब्दुल कादिर गिलानी NA 152 मुल्तान से उम्मीदवार होंगे। भरपूर तैयारी इंतखाबात की जारी है सियासी जमातों की जानिब से और अब इलेक्शन डे यानी पोलिंग डे 8 फरवरी तक तमाम उम्मीदवार जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम पर फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी आपका। इलेक्शन कमीशन ने ANP को उसका पुराना इंतखाबी निशान लौटाने के अलॉट कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी लालटेन के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। ECP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में महफूज फैसला सुना दिया। 3 माह में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इलेक्शन कमीशन ने ANP को उसका पुराना इंतखाबी निशान लालटेन अलॉट कर दिया। लालटेन जलती रहेगी। अवामी नेशनल पार्टी लालटेन के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा, आम इंतखाबात का शेड्यूल दिया जा चुका है। मुल्क में इलेक्शन मुहिम चल रही है। सियासी जमातें शिरकत कर रही हैं। ANP की दरख्वास्त को मान लिया गया। 10 मई तक इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी पर 20,000 का जुर्माना कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांगी गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा ANP की 5 साल की मुद्दत अभी मुकम्मल नहीं हुई। नून लीग में टिकटों की तकसीम पर नाराजगियां। लीगी क़यादत का तलाल चौधरी और चौधरी जाफर इकबाल से राब्ता। पैगाम पहुंचाया, पार्टी आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। जिन्हें टिकट नहीं मिले उन्हें सेनेट रुकनीत के अलावा दीगर अहम ओहदों पर एडजस्ट किया जाएगा। तलाल चौधरी के हल्का NH 96 जड़ावाला से PTI से आने वाले नवाब शेर को टिकट जारी किया गया। चौधरी जाफर इकबाल के हल्का NA 65 गुजरात से नसीर अब्बास सिद्धू को टिकट दिया गया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिया गया, जिसकी बाकायदा लिस्ट सूबाई इलेक्शन कमीशन में आवेजा कर दी है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी को तीर, नून लीग शेर, जमात इस्लामी तराजू, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम को किताब का इंतखाबी निशान दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जिसकी बाकायदा फ़हरिस्त जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में आवेज़ा कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार सियासी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको जो है सियासी जुमात का जो निशान है वो अलॉट कर दिया गया है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को किताब, जमात इस्लामी को तराजू। इसी तरह कुछ देर पहले जो है वो अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का निशान अलॉट कर दिया गया है और हिरन भी इसमें जो है वो शामिल है। तो आज़ाद उम्मीदवारों को ये निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। और आपका बलूचिस्तान में नून लीग और नेशनल पार्टी की जानिब से इंतखाबी इत्तिहाद के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इंतखाबात का वक्त है, सब इत्तिहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़हरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग और नेशनल पार्टी के इत्तिहाद से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानिश मुराद से। जी लीग नून और नेशनल पार्टी की जानिब से सियासी जो है वो एक दाव पेच जो है वो बलूचिस्तान में खेला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ज़राए के मुताबिक पहले जो फेज़ है उसमें नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के 3 अजला में जो है वो इत्तेहाद करेगी, जिसका मकसद जो पीपल्स पार्टी के आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका रास्ता रोका जाना है। जबकि इस वक्त जो सूरत हाल ज़िला लसपेला अवरान और हब में जो बनी है उसके हवाले से एक उनकी मीटिंग भी हुई है। इस हवाले से पहले फेज में इनकी बातचीत जारी है। मेरे साथ इस वक्त साबिक सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद है, उनसे जानते हैं सर, एक सियासी इत्तेहाद बन रहा है, आपकी जमात के खिलाफ क्या कहेंगे? देखें, इत्तेहादें तो बनती रहती हैं। इस हवाले से मैं यही कहूँगा, कुछ अर्सा पहले नेशनल पार्टी में ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का चेयरमैन जो है मीर कबीर मोहम्मद शही है। तो मैं समझता हूँ अगर जाम साहब और डॉक्टर मालिक साहब के दरमियान कोई बातचीत हुई है एहतियात के हवाले से, क्योंकि सियासत है, सियासत का मौसम सर्द है, सियासत का गर्म है, तो इस
इलेक्शन का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़हरी बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई है। ISPR की जानिब से बताया गया है पाक फौज के सीनियर अफसरान, शहदा के वरसा और अहले इलाका की शिरकत। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प हुई थी। 29 साल अफजल का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, 27 साल अबरार का ताल्लुक मानसहरा से था। आगे बढ़े, आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये तक कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी का तेल 3 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने की तवक्को। मार्केट ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये तक कमी मुतवक्के है। हुकूमत कीमतों में रद्दोबदल की बजाय बरकरार भी रख सकती है। निगरान वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान होगा। तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट की शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। पासपोर्ट ना रखने वाले ड्राइवर्स की गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया गया। दूसरी तरफ अफगान हुक्काम ने भी सामान ले जाने वाली पाकिस्तानी गाड़ियों को अफगानिस्तान में दाखिले से रोक दिया। अफगान हुक्काम ने मुतालबा किया कि अफगान ड्राइवर्स को पासपोर्ट की शर्त से इस्तिस्ना दिया जाए। पाकिस्तान हुक्काम का कहना है कि वीज़े से इस्तिस्ना पहले ही दिया जा चुका है, ताहम वैलिड पासपोर्ट की शर्त पर अमल दरामद कराया जा रहा है। और अब बात करते हैं गज़ा के हवाले से। गज़ा पर अक्टूबर से जारी जारियत में शहदा की तादाद 23,708 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 60,000 बताई जाती है। शुमाली गज़ा में इस्राएली तैयारों ने एक बार सेफ जोन का निशाना बनाया। हमले में 100 से ज़ायद शहादतों की इत्तला है। ये मुर्दा अजसाम चंद घंटों कबल जिंदा इंसान थे। शुमाली गजा में इमदादी ट्रक की राह तकते लोगों पर इस्राएली तैयारों ने बम बरसा दिए। सफ़ाकाना कार्रवाई में 151 फलस्तीनी शहीद और 248 जख्मी हुए। इसराइली बमबारी ने इंटरनेट और टेलीकॉम का निजाम भी दरहम बरहम कर दिया। दीरुल बलाह में भी इसराइली हमला 15 जाने ले गया, जबकि मगरिबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद हुए। एक बुजुर्ग ने इसराइली हमले का आंखों देखा हाल सुनाया। इसराइली टैंक बिला इम्तियाज शैलिंग कर रहे थे। इसराइली फौजियों ने जान बचाकर भागने वालों को भी निशाना बनाया। कई खवातीन और बच्चे जान से गए। हम इतने मजबूत थे कि तड़पने वालों की मदद भी न कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने शुमारी गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त गजा की 85% आबादी दर बदर है। वो जहाँ जाते हैं इसराइली मिसाइल मौत बनकर पीछे आ जाते हैं। और अब कुछ बात मौसम की। आज से कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसा बहरा अरब में हाई प्रेशर की वजह से होगा। मेट ऑफिस के मुताबिक कराची के साथ जनूबी सिंध में भी सर्दी की शिद्दत कम होगी। दिन और रात के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। आज शहर कायद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। शहर में मतला साफ और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस गर्दू में माहौलियाती तब्दीली के बाइस अभी तक बर्फबारी शुरू न हो सकी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने इस गर्दू का रुख कर रही है, लेकिन मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इकबाल अली इकबाल से।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया का बुलंद तरीन सरफरंगा में। जनवरी का महीना है और आपको इस मेरे अकब में नज़र आ रहे सहयों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर आई हुई है और शदीद सर्दी भी है, लेकिन एंजॉय के लिए इस्लामाबाद से कुछ खवातीन आई हुई है। हम इनसे गपशप करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आपने? आज एंजॉय करना आप यहाँ आए, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग तो बर्फ देखने आए थे, खैर बर्फ तो मिली नहीं, लेकिन हमने इस सहरा की बहुत मजा आया। इसमें बहुत एक्साइटेड थी। मैं फर्स्ट टाइम स्कर्दो आई और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर कल हम लोग आए हैं, 2 डेज हो गए। हम वैसे तो आए थे स्नो के लिए, बट यहाँ आके पता चला स्नो नहीं है, बट फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ के बुलंद वाला पहाड़ हो, रेत हो, दरिया हो, नदी। बहुत शुक्रिया। अमेरिका के शहर शिकागो में शदीद बर्फानी तूफान, तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी जारी है। शिकागो एयरपोर्ट और मिडवे एयरपोर्ट में 1000 से ज़ायद फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गईं, जबकि बर्फ़ के तूफान के नतीजे में स्कूल्स में तातीलात का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शिकागो से हमारे नुमाइंदा इंसार रिजवी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शिकागो मौजूद हूँ और आज यहाँ शिकागो में बर्फ़ का शदीद तूफ़ान यहाँ पर आया हुआ है और इस वक्त तकरीबन 1 फुट के करीब मौका में पेशन गोई की है कि आज सारा दिन जो बर्फ़ पड़ेगी और इस बर्फ़बारी के नतीजे में आज तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं और इस वक्त जैसा आप देख रहे हैं कि बर्फ़ पड़ने का सिलसिला जारी है और यहाँ के स्कूलों के अंदर भी आज। बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने इलेक्शन में जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी। राम मंदिर की इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। भारतीय मुसलमानों पर इंतहा पसंदों ने ज़मीन तंग कर दी। DW ने इंतखाबात के करीब आते ही मोदी के ओछे हथकंडों का राज फाश कर दिया। इलेक्शन में जीत के लिए हथकंडे, मोदी सरकार का मुसलमान दुश्मनी में एक और मंसूबा, राम मंदिर, मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। DW हक़ाइक़ सामने ले आया, कहा 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद के मुक़द्दस मकाम पर राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करने के लिए मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जमीन तंग कर दी। मुसलमानों पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने में भी इजाफा। राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख करीब आते ही मुश्तइल हिंदुओं ने मुल्क में इंतशार और फसादात को। और अब खबर खेल की दुनिया से। ऑकलैंड में पहला T20 कीवीज के नाम रहा। दूसरे मैच में जीत के लिए कल हैमिल्टन में पंजा आजमाई होगी। ऑकलैंड के बाद हैमिल्टन बनेगा दूसरे T20 का मेजबान। सीडॉन पार्क में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने कई मौके गंवाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। खूबसूरत सा दिन है, नीला है आसमान। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, हर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन E का सुपर मिक्स।
जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर, सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, भर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रास्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को ओसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ ओसाका बैटरीज। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। फैज दर उतर दिया गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तू स्याह प्लासम रखी लेके आना। ब्लीनी हेयर कलर, बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। Be cool, be fun, be bold, be young, ब्लीनी हेयर कलर, हर रंग में लगो यंग। Experience the luxury of Faez Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Faez Sanitary for an elegant lifestyle. PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। PTI वकील अली जफर के दलाइल, कहा इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, PTI के साथ जानिबदाराना और बदनीयती पर मबनी सलूक किया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों में भी होनी चाहिए। बुनियादी सवाल जमहूरियत का है, पार्टी आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का नहीं। कम अज़ कम इतना तो नज़र आए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, लूली लंगड़ी नहीं, पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त साबित हुए तो इंतखाब निशान का मसला ही हल हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है तो उसको भी साबित करें। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा, कहा अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। आप जब बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती भी साबित करना होगी। अगर आप उसे ड्रामाई और सियासी रंग देना चाहते हैं तो पूरा मतन बयान करें या अपना केस कानून तक महदूद रखें। एक जेल से निकलना, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरे इधर उधर, मगर हम आवाम की तरफ देख रहे हैं। डरने झुकने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। आवाम पुरानी सियासत दफन करके नई सोच सामने लाएं। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा दीगर जमातें अमीरों को रिलीफ, आवाम को तकलीफ देती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। ख्वाहिश है आवाम के लाडले बने। 10 निकाती माशी मुआहदे पर अमल करेंगे। मुल्तान से राना महमूदुल हसन का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। PTI इंतखाबी निशान की हकदार है, सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाबी निशान केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा गया, सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में महफूज फैसला सुना दिया। ANP को 10 मई तक इलेक्शन कराने का हुक्म। मोहलत मांगने पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद। आम इंतखाबात में कौन इन कौन आउट, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज सामने आएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात भी अलॉट करेगा। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल आखिरी रोज़ भी जारी।
इंतखाबी मुहिम को टॉप गेयर। पीपल्स पार्टी आज बहावलपुर में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो दिन 2 बजे जलसे से खिताब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी भी हमरा होंगे। जलसा गाह में इंतजामात को फाइनल टच दे दिया गया। स्टेज बन गया, कुर्सियां भी लग गईं। कारकुनों की आमद जारी। नून लीग में टिकटों की तकसीम पर नाराजगियां। लीगी क़यादत का तलाल चौधरी और चौधरी जाफर इकबाल से राब्ता। पैगाम पहुंचाया, पार्टी आपकी खिदमात को फराहमोश नहीं कर सकती। जिन्हें टिकट नहीं मिले उन्हें सैनेट रुकनीत के अलावा दीगर अहम ओहदों पर एडजस्ट किया जाएगा। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन मकरान रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार अफजल ड्यूटी के लिए जा रहा था। नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बना दिया। 24 घंटे में फायरिंग का दूसरा वाकया। गुज़िश्ता रोज़ भी मशरिकी बाईपास पर फायरिंग से एक एहलकार शहीद हुआ था। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। शहदाद कोट और मोहम्मद के रिहायशी नौजवान जद्दा, शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी अबूधाबी से कराची पहुंचा। कराची में JN1 वेरिएंट के 5 केस सामने आ गए। 5 केसेस के नताइज निजी लेबॉर्ट्री ने जारी किए। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फेस्ट का आगाज़। दुनिया भर से 20 स्कॉलर्स मुख्तलिफ सेशंस में इजहार ख्याल करेंगे। 24 किताबों की भी रुनुमाई की जाएगी। मुल्की और आलमी सियासत, माहौलियाती तब्दीलियों, तारीख, तालीम, मईशत समेत दीगर मौज़ूआत पर 50 सेशंस होंगे। इलेक्शन 2024 के बाद मुल्की हालात पर खुसूसी सेशन भी फेस्टिवल का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। गजा के लिए पाकिस्तान से 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप रवाना। पाक फ़ज़ाइया की खुसूसी परवाज़ नूर खान एयरबेस से रवाना हुई है। तिब्बी सामान, खुश्क खाने की अशिया, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स भी शामिल हैं। इमदादी सामान की खेप उर्दन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर वसूल करेंगे। इमदादी सामान वसूली के बाद तकसीम के लिए गजा रवाना कर दिया जाएगा। एक और अहम खबर है, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर SBCA के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखने का हुक्म दे दिया गया। डायरेक्टर नादरा, आमिर कमाल और शेख शाहिद का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक रखें। अदालत की जानिब से कहा गया। नोटिस के बावजूद इमारत की तामीर मुकम्मल हुई और लोगों को बसाया गया। गुजरांवाला में घरों के अंदर 2.5 करोड़ का डाका। डाकू 2 घरों से 2.5 करोड़ का सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने दोनों खानदानों को असलहे की नोक पर यरगमाल बनाया। 105 तोले के करीब सोना, 20 लाख और कीमती घड़ियां लूटी गईं। वाकया थाना अरूफ की हुदूद हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। और अब कुछ दीगर खबरें। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फेस्ट का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में दुनिया भर से 20 स्कॉलर्स इजहार ख्याल करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 50 सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे। 24 किताबें भी रुनुमाई के लिए पेश की जाएंगी। तफसील बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फीस्ट का इनकाद होने जा रहा है और इसमें जो है दुनिया भर से 20 से ज़ायद जो है मुकर्ररीन वो यहाँ पे खिताब करेंगे। मुख्तलिफ यहाँ पे सेशन किया जाएगा। 2 रोज़ तक ये चलेगा। 13 और 14 जनवरी इसकी जो है डेट फिक्स की गई थी और आज इसका पहला रोज़ है। पहले सेशन में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी वो खिताब करेंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे मुफ्ता इस्माइल वो खिताब करेंगे। दीगर मुकर्ररीन खिताब करते जाएंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल है। लिटरेरी फेस्टिवल में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचती है और सकते हैं यहाँ के बुक्स पब्लिशर की जानिब से यहाँ पे लगाए गए हैं। लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, बुक्स जो ख़रीदते भी हैं, यहाँ पे पढ़ते भी हैं। दुनिया भर से जो नामवर जो है शायर हैं, मुकर्ररीन हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और अपने जाफर बिन यार, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहावलपुर के हॉकी स्टेडियम में सियासी पावर शो करने जा रहे हैं। जलसागाह में इंतजामात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जान लेते हैं बहावलपुर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मुर्तज़ा से।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भावलपुर में सियासी ताकत का जो है वो मुजाहरा करेगी। इस टाइम हम भावलपुर के हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तकरीबन 2 बजे के करीब भावलपुर पहुंचेंगे और जलसागाह से जो है वो खिताब करेंगे। इंतजामात की अगर बात की जाए तो मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे स्टेज तैयार हो चुका है, कुर्सियाँ जो हैं तकरीबन 5000 के करीब लग चुकी हैं। कारकुनान जो होता है तकरीबन अभी से आना शुरू नहीं हुए, 12 बज चुके हैं, लेकिन जो है ये भी बताया जा रहा है कि दीगर कायदीन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बहावलपुर पहुंचेंगे, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी जो है वो मौजूद होंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स भी जो हैं वो मेन एंट्रियों पर जो है वो हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया चौधरी मुर्तज़ा, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज बहावलपुर में जलसे से खिताब करेंगे। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 145 जमातों के इंतखाबी निशानात की एक लिस्ट आरओज़ को भेज दी गई है और उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। 13 ऐसी जमातें हैं कि जिनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद पर डीलिस्ट कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला चूंकि अभी तक अदालत में है, कल ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को ये फहरिस्त जारी करनी है और इस लिस्ट में अब अगर कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं होता तो फिर उनके इंतखाबात में क्या हिस्सा पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और फिर इलेक्शन के हवाले से जो खदशात इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक और करारदाद सेनेट में जमा करवाई गई है और आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं, जिनके बड़े कंसर्न्स हैं, बड़े रिजर्वेशंस हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामलों को लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि सेनेट इस बात पर जोर देती है इलेक्शन कमीशन पर और जो दीगर रेलेवेंट इदारे हैं उन पर कि इस वक्त हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है, 3 महीने के लिए इसको डिले किया जाए। इससे पहले भी हमने अभी 5 जनवरी को देखा था जब एक और करारदाद पेश की गई थी इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक ही। तो ये करारदादें जो पेश हो रही हैं ये क्या कानूनी तौर पर कोई असर डाल सकती हैं 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात पर? और इस वक्त जो सियासी तौर पर जो सूरत हाल है, जो एडजस्टमेंट चल रही हैं वो भी बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ साहब कराची कह रहे हैं 242 से दस्तबरदार हो गए, तो वहां पर एमक्यूएम के क्या था वो फैसला और बल्ले का निशान जब तक उनके पास है, और जो पहले वाला इलेक्शन कमीशन का जो था जिसमें उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया था वो स्ट्राइक डाउन है। तो इसका मतलब है कि फिल वक्त जब तक कोई और फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, पीटीआई के पास इस वक्त करंट सिचुएशन में बल्ले का निशान है। और अगर इस हालात में एक लिस्ट जारी होती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो उनको ये बल्ले का निशान उसमें शो करना चाहिए था। शायद उसके बाद अगर नहीं दोबारा से लेते तो बेशक आप उसको हटा देते, लेकिन अभी जो है वो ये तासुर नहीं आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का कि वो बज़िद है कि बल्ले का निशान उसने पीटीआई को नहीं देना, और बावजूद पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के उसने बल्ले का निशान पीटीआई अपनी वेबसाइट से पीटीआई को हटा दिया। और यही वजह है कि पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त पीटीआई ने दायर की है। अब मामला ये रह गया कि अब जो सिचुएशन है तो डेफिनेटली कल चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अलॉट करने हैं इंतखाबी निशान और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि वक्त कम है, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम कल भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वो बात सुनने के मूड में क्या हमें और आपको नजर आते हैं? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमें बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होती हैं, जहां पे हालात जा रहे होते हैं, जो फैसले हो रहे होते हैं, जो फिजा बन रही होती है, जो मूड बन रहा होता है, उसी किस्म के फैसले जो है वो अदालतों से आ रहे होते हैं। तो इस हद तक डीप उसमें जाना और फिर ये जो सवालात करना, या तो देखिए ना वही वाली बात है जो सारे उठ के बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह देती कि जी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ पीटीआई ने इलेक्शंस कराए, लेकिन क्या इस ट्रांसपेरेंसी के साथ और पार्टीज के होते हैं? अगर पीटीआई को कचहरे में खड़ा किया है तो दीगर पार्टी को भी कर दे। अब बात सारी आ जाएगी कि क्योंकि पीटीआई के अपने लोगों ने उठ के खड़ा किया है, इसमें फरीक बना है। अब देखें ना, आज फिर हामिद खान साहब ने ये मामला भी उठाया कि जी इलेक्शन कमीशन तो ये फरीक वो दावा नहीं कर सकता या ये वो अपील दायर नहीं कर सकता जिसमें
सवाल भी उनसे हुए। एक सिंपल सी चीज है, अगर उन्होंने फरीक खुद से अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें डेट देती है, मतलब इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक पार्टी बना के पेश हो गया। भाई इलेक्शन कमीशन ने एक फरीक की दरख्वास्त पर उसके हक में फैसला दिया और इमरान खान का या पीटीआई का जो इलेक्शंस थे उसको उन्होंने मुअत्तल किया, स्ट्राइक डाउन किया और बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया। अब अगर वो दोबारा वहां चले गए तो उस फरीक पे चले गए। अब वो फरीक अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट ने फिर इनका कर दिया है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा केस है वो स्ट्रॉन्ग है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन रहा है, ये हमारी समझ से कम बाहर है कि इलेक्शन कमीशन क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसने एक फरीक की दरख्वास्त पे, उसका अपना डिसीजन नहीं था, उसने एक फरीक की दरख्वास्त पे डिसीजन दिया था। तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। बट अगेन जब हवाएं जो है वो मुखालिफ सिंध में चलती हैं तो फिर ऐसे ही होता है जो हमें दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जो कहते हैं कि जी बल्ले का निशान नहीं भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ जो सिविलाइज या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें इंतखाबी निशान नहीं होते, उसमें सिर्फ नाम होते हैं। हमारे यहाँ इंतखाबी निशान की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। अब हमारे डेफिनेशन तो ये कि जी जो अपना नाम लिख ले वो लिटरेट है, जाके हकीकतन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इंतखाबी निशान की जरूरत पड़ी कि लोगों को अगर नाम नहीं पता, लोगों नाम से लोग नहीं याद कर पाए तो वो इंतखाबी निशान से याद कर पाए। पूरे के पूरे जो इलेक्शन कैंपेन चलती है वो इंतखाबी निशानों पे चलती है। तो अगर आप बल्ला ले, अच्छा यहाँ पर एक और बात ना भूलें कि जो वक़ार ज़िका है उन्होंने एक अपनी नई पार्टी रजिस्टर करा के उन्होंने बल्ले का निशान बाय द वे उन्होंने भी मांग लिया है। आपको याद होगा अभी हाल ही में हुआ है ये वाकया। तो चीजें जो है बड़ी खूबसूरत आगे जाके मोड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही इनसे बल्ले का निशान लिया जाएगा, यू नेवर नो, इलेक्शन कमीशन जो है उस पार्टी को बल्ले का निशान अलॉट कर दे तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इंतखाबी निशान से किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं या उसके कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डेफिनेटली वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि कल की नादिया सना मिर्जा साहब, कल की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल कानून की बालादस्ती हो और जो इंसाफ के लिए जिस अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को जिस तरह से हम खराज तहसीन भी पेश करते रहे मुख्तलिफ मामलात पर, वही वाला मामला कल सामने आया। लेकिन ये जो मुख्तलिफ करारदादें इस वक्त सेनेट में हम पेश होते देख रहे हैं, पहले एक करारदाद, फिर चंद दिन के फ़र्क से एक ही हफ्ते बाद दूसरी करारदाद सामने आ गई, तो ये इन करारदादों की क्या अहमियत हो सकती है? बज़ाहिर तो कोई इम्पैक्ट ये क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन ओवरऑल माशी एतबार से एक सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा हो जाती है कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। एक आम आदमी अभी तक इसी कन्फ्यूजन में, जबकि खुद काजी फाइज साहब कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन तो खुद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नादिया साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। जी मैं सना साहब असर मैंने पूछा था, मैं नादिया साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा वापस। जी सना साहब, मैं सिर्फ यस करी थी कि कंफ्यूजन तो पैदा करने की कोशिश की जाती है। आप अवाम को जब तक कंफ्यूज रखेंगे तब तक आप उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि 76 सालों से यही होता रहा है। जहां तक करारदादों की बात है, एक वक्त वो भी था जब इन करारदादों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, रद्दी की टोकरी में चली जाती थी। लेकिन मैंने इतनी एफिशिएंसी पिछले कुछ अरसे में जो रिसेंट टाइम्स थे उसमें नहीं देखी कि एक करारदाद पेश होती है जो कि एक आजाद सेनेटर की तरफ से, जिनकी माजी में शायद एफिलिएशन पीटीआई के साथ रही हो, लेकिन इस वक्त वो आजाद कंडीशन में कंटेस्ट करने के अलावा सेनेट में मौजूद थे, वो एक करारदाद पेश करते हैं, ना कोरम पूरा होता है, ना उसकी कोई निशानदही करता है, ना सेनेट के चेयरमैन ये अर्ज करने की कोशिश करते हैं किसी कैंडिडेट से, सेनेटर से कि जी आप कोरम के ऊपर बात तो कर लें। एक ले दे के मुस्लिम लीग नून के सेनेटर वहां रह जाते हैं जो ये बात करते हैं, लेकिन वो भी कोरम की बात नहीं करते। और फिर वो करारदाद मंजूर होने के बाद, यानी कि जो आपका नॉर्मल डेकोरम है, जो आपके रूटीन की जो उसमें चीजें थी, उनको मुअत्तल करते हुए, डिसमिस करते हुए सेनेट के चेयरमैन उस करारदाद को पेश करवाते हैं और उसको एड्रेस करके उसको अप्रूव करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो मंजूर होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन में जा रही है और वो उसको कह रहे हैं कि जी आपने हमें 3 हफ्तों में या 3 महीने में इसके ऊपर रिपोर्ट देनी है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि आप इसके ऊपर काम करें। यानी आपने 1.5 महीने से कम वक्त आपके पास इलेक्शन के लिए रह गया है और आप ये कह रहे हैं कि आप चंद हफ्तों या चंद महीनों में इसके ऊपर कार्रवाई करके वापस हमें बताएं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस करारदाद को अहमियत दे रहे हैं। तो उसी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने एक और करारदाद आज पेश कर दी। और मतलब हैरत अंगेज भी और मजेदार बात भी यह है कि तमाम के तमाम आजाद सेनेटर्स ये करारदाद पेश कर रहे हैं, कभी मौसम को जवाब बना रहे हैं, कभी दहशतगर्दी को जवाब बना रहे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद एक गुंजाइश फिर भी रखी जा रही है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर गेम किसी दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगेगा तो उस वक्त इन करारदादों की अहमियत भी होगी और इन करारदादों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट को आगे पीछे कर दिया जा सकता है। एक आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है उसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगी कि अमेरिका में जाने से पहले आर्मी
आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि इलेक्शन थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन इलेक्शन होंगे जरूर। लेकिन जब वो दौरा अमेरिका मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे तो बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे और 8 फरवरी को होंगे। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरे से उनको क्या चीज बावर करवाई गई। जहां उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होंगी वहां उनके सामने भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई। तो क्विकली मैं सिर्फ लास्ट अब इन करारदादों की कानूनी अहमियत क्या है और क्या कानूनी तौर पर ये आगे कोई हर्डल क्रिएट कर सकती है? हाफिज हसन अहमद साहब हमारे कानून में ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब जरा आपके पास आने से पहले मैं नादिया साहिबा का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं कि एक के बाद दूसरी करारदाद नादिया साहिबा अब ये अगले 25 दिन में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियों को देखे या फिर इन करारदाद को वो कंसीडर करे और इन पर गौर फिक्र शुरू कर दे और उसमें फिर वो अपना टाइम जाया करे? हाफिज साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जरा। हाफिज साहब ये नादिया मिर्जा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने इस पर मैं आ रहा हूं। जी नादिया साहब, बेसिकली आप जिस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं और जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ये उसी के लिए करारदादें पेश की जा रही है। देखा जाए तो इनकी आईनी और कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि मैं और आप बैठ के प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, ऑल्दो कि हमें काजी फायज साहब ने कहा, जस्टिस काजी फायज साहब ने, कि कोई ये बात भी ना करे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन पत्थर की लकीर है। लेकिन जब इस किस्म की करारदादें सेनेट में पास हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट चाहे अभी हो या नहीं हो, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत हो या नहीं हो, वो मीडिया पे डिस्कस हो रही है, वो मीडिया पे आ रही है, वो प्रोग्राम में डिस्कस हो रही है, वो मैं और आप बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अफसोस की बात यह कि दुनिया में बाबर करा रही है। अभी आपने देखा हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी कि ये अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक क्योस होगा, मुल्क के माशी हालात सही नहीं होंगे, मुल्क की सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है, जिसके आपके माशी डेट अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टाउनों में नई सड़कें हमने बना ली हैं, कोई प्लेग्राउंड बना लिया है, कोई अपनी डिस्पेंसरी ठीक कर दी हो, बेसिक हेल्थ यूनिट उन्होंने ठीक कर दिया हो, कुछ भी नहीं करते। हम रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कोई डेवलपमेंट के इशू पे बात करते हैं आपसे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, ये बेहतरी ला रहे हैं और आपको बेहतरी होते हुए नजर आ रही है। बाकी जो उन्होंने ढक्कन के हवाले से बात की, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा शुक्रिया नईम और रहमान साहब आपका कि आपने एतराफ किया कि ढक्कन आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ढक्कन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारे ढक्कनों पे नीला रंग करते हैं, आप गौर से जाके देखिएगा उसमें KWSC लिखा हुआ नजर आएगा आपको। तो ढक्कन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लगा आप रहे हैं, तो खुदा खैर करेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे ढक्कनों को आप कलर करके अपना नाम दे दें, लेकिन प्लीज खुदारा लोगों की खिदमत करें, लोगों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करें। जी बता दें। इस्लामी के प्रोग्राम के अंदर एक सहाफ़ी के साथ बदतमीजी की गई और वो धक्के दिए गए, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ ये शर्मनाक तर्ज अमल है। हमारा इख्तिलाफ सबसे हो सकता है, आप कभी कभार सहाफ़ी दोस्त बड़े तुर्श और ख़तरनाक सवाल पूछते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह की जारहाना चीज़ आपके साथ करें। मैं इसको शर्मनाक कहूँगा और मैं इसकी मजम्मत करना चाहूँगा। सहाफ़ी हमारे भाई हैं, इस कौम का मुआशरे का असास हैं और इज़्ज़त एहतराम के साथ, रवादारी के साथ हमें चलना चाहिए। यही वाली बात है जो वालिद साहब को ये लोग याद कर लेते हैं। तो जब तक मेरे वालिद साहब को, सलमान के वालिद साहब को याद कर रहे होते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करते। जब आपके वालिद साहब को याद करते हैं, कम अज़ कम मैं कंडेम तो करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ हम सबको एक दूसरे के वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और इसी चीज़ को अपनी आने वाली नस्लों को बताना चाहिए कि इस मुआशरे में रवादारी, इज़्ज़त, एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह है। कुछ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची लेकिन उसका कानूनी तौर पे जो है ना कोई जवाब बनता है, ना कानूनी तौर पे जो है उसकी कोई वैल्यू है। अच्छा। और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जिस तरफ इशारा किया जा रहा था कि जी उन्होंने लिखा, हाँ वो एक सेक्रेटेरिएट लिखता है और बात चीजें ऐसी हैं कि रेजोल्यूशन के जरिए शहर या पार्लियामेंट उसे इम्प्लीमेंट भी करवाता है। बट ये एक ऐसी चीज है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 224 के नीचे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर डेट्स कंफर्म हुई है, उनकी कॉन्फ्रेंस उसके अंदर हुई है, इलेक्शन प्रोग्राम्स ऑन गोइंग है। कल आपके मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन सिंबल्स जो है वो देने शुरू कर दिए जाएंगे और तकरीबन 26-27 दिन जो है वो इस मुल्क के अंदर तो ये इन करारदादों का फिर होता क्या आगे? ये चेयरमैन सेनेट क्या इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और अपनी अप्रूवल या दो चीजें जो है इन जो रेजोल्यूशन से वो है और वो उनको जेन्युइनली मान लेना चाहिए। एक ये है कि ये जो रेजोल्यूशंस आपकी आ रही है, ये आ रही है 2 प्रोविंस से आ रही है, जो आपके KP के है और एक आपका बलूचिस्तान है, और वहाँ के ऊपर जो मौसम है या उसके बाद आपका ये जो सिक्योरिटी जेन्युइन है, देर तक आप फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शंस के लिए एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसको पूरा नहीं करेंगे, उस देर तक आपके मुल्क के अंदर या उस इलाके के अंदर इलेक्शन जो है उसको फ्री फेयर कहना बड़ा मुश्किल आएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह का एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बुनियादी चीज उनकी यही होगी कि हमारे जो इश्यूज हैं इन कंसर्न्स को एड्रेस करें, और ये किसी भी इलाके के जो लोग हैं उनका इंडिविजुअल जो ओपिनियन हो सकता है, बट उसको कंसीडर करके हम इस डिबेट के अंदर पड़े कि हम उनका ये हक भी नहीं ले सकते या वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगली चीज ये है कि लॉ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ के अंदर ये है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके पीछे अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस को वॉच कर रही है और वो हर वो चले, यानी कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी हडल क्रिएट नहीं होगी। 8 फरवरी को ये इंतखाबात तो उन्हें अब सना साहिबा ये जो इस वक्त पॉलिटिकली जो सीट एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं, खासतौर पर हमने देखा कि नून लीग और IPP में जो एडजस्टमेंट्स थी, नून लीग ने अपनी 2-3 नशिस्तें, 2 कौमी की, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त IPP के लिए खाली छोड़ दी है। तो हुकूमत साजी से पहले ही ये नंबर्स पूरे हो चुके हैं और बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में नून लीग इस वक्त आगे बढ़ रही है। तो क्या मंजरनामा नजर आ रहा है, अगर ब्रीफली आप बता सकें? देखिए, जहां तक बात है नंबर गेम की, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं थी। हम समझ रहे थे कि शायद IPP के साथ मामला तय नहीं होंगे, MQM से हो जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि MQM से शायद उनको बैकआउट करना पड़ा। NA 242 पे मुस्तफा कमाल साहब को कुर्बान नहीं करना चाह रही थी MQM, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद नून लीग के अंदर जो अपने मसाइल थे, जिस तरह याद सादिक साहब, रोहेल असगर साहब एक ही सीट के ऊपर वजिद थे लेने के लिए, तो खुद नून लीग के अंदर भी इश्यूज बहुत ज्यादा है। IPP और मुस्लिम लीग काफ से अगर वो बातचीत ना करते, नेगोशिएशन ना करते, तो बड़ा मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि नून लीग की जो पॉलिटिक्स को समझते हैं लोग, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नून लीग ने बहुत कम ही मर्तबा ऐसा किया है कि इलेक्शन से पहले ही सीट एडजस्टमेंट करनी हो। इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की राय ये थी कि हमें 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, सो कॉल्ड जहां से दिलवाई जाती है, लेकिन आई थिंक वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ नहीं जा रहे। बड़ी मुश्किल से अगर सिंपल मेजोरिटी तक भी नून लीग चली जाए तो ये बड़ी बात होगी, और शायद इसी वजह से नून लीग को पहले से बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है ताकि जब हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो यही IPP और यही मुस्लिम लीग काफ उनके साथ खड़ी हो, बजाय इसके कि वो अपोजिशन में साथ खड़े होकर उनके साथ हुकूमत बनाए। नून लीग उस पोजीशन में नहीं जाना चाहती। वक्त चूंकि बस थोड़ा है, मैं चाह रहा हूं कि नादिया साहबा भी इस पर एक शॉर्ट कमेंट कर दें। नादिया साहबा, ये NA 242 में जो ये एडजस्टमेंट कामयाब नहीं हो सकी MQM और PMLN की, आगे चलकर कोई मुश्किलात खड़ी कर सकती है PMLN के लिए? नहीं, मुश्किलात तो मैं नहीं समझती कि खड़ी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो इस हल्के से लड़े। आपको याद है इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब लड़े थे और उससे वो जीते भी थे। मैं ये भी बता दूं कि फैसल वाडे के मुकाबले में वो जीते भी थे, लेकिन आपको याद है उस हल्के एप्लीकेशन दी थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। फैसल वाडे को जो है वो ताज पहना दिया गया था। तो ये लेन देन के मामलात हैं PMLN और MQM में। बहुत कम मार्जिन था, कोई 900 कुछ वोट से फैसल वाडा कामयाब हो गए थे, बहुत कम मार्जिन था। और चाहते थे शहबाज शरीफ साहब की दोबारा से गिनती हो, और वो गिनती नहीं हो सकी थी और नहीं कराई गई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा एज सच, लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। और ये कुछ लो और दो, कुछ दो की सियासत है, और लिया है किसी ने, कुछ दिया है। तो PMLN और MQM का तो आपको पता है हिस्ट्री यही है, तो इस सब मामला भी बस यही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे एडजस्टमेंट्स कितनी कामयाब होती हैं। नादिया मिर्जा साहबा, सना मिर्जा साहबा, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। $70 करोड़ IMF से जो दूसरी किस्त स्टैंड बाय प्रोग्राम की आनी थी वो पाकिस्तान को मिलने वाली है। उसके बाद पाकिस्तानी मईशत कितनी मजीद मुस्तहकम हो जाएगी, एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। खूबसूरत सा दिन है, नीला है आसमान।
एक बार फिर आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहां पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact nomination forms were only submitted by one side and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है। It has been since some time now. अच्छा। जी, तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि। So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल, और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then your lordship, eventually if your lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी फर्स्ट दिसंबर 23 तक, तो जो नॉमिनेशन जिस तरह लोग आते गए, इट वाज ऑल पुट ऑन द मीडिया. एंड इफ योर लॉर्डशिप लुक्स एट पेज 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया, सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का, उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक में. बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और पुलिस से, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये, उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है, और ये 30 हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें. जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो
ये जो लेटर आया था हमें इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी के all the newspapers actually published it. PTI इंट्रा पार्टी पेज 16, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है। पेशावर इंट्रा पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये फर्स्ट का डेट खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस, so he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया। कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर वो करना चाहते उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके। पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में सर, आई विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी, item 5, last election of chairman, and अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर सीधा नेक्स्ट पेज पे, 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं, सिर्फ चेयरमैन के। क्यों? कहीं लिखा है ये? सर पैनल है ना जी। नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? नहीं सर, वो उसमें सिंगल को है ही नहीं। I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि इंडिविजुअल कर सकता है। पैनल कहीं इसका एक्सप्लेन किया गया है? कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये 5.1.1 भी पढ़ लें जी। Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be। ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ सर, ये भी नॉमिनेशन पेपर। इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं, इधर नहीं है। So there are two। नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया? नहीं सर, nobody came and opposed him। इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं, if your lordship turns to page 17, yes, page 17, नहीं, दो अलग अलग बातें ना जी। ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन जी,
मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है। इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है, बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा। नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे। जी जी। मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स। सीक्रेट बैलेट जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी। तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना वोट। अगर सर कंटेस्ट ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड, उनको वोट तो डालना होगा फिर भी कि हाँ जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया। सर इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू। So, नहीं, देखिए वोटिंग ये भी हो सकती है, मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, मगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती, बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं जी जी, ठीक है। तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं, तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे। फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आप में नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके। मतलब सर जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है। मैं आई विल टेक ओनली खैर आगे बढ़ें सब ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ। आई विल रीड इट, योर लॉर्डशिप डजंट हैव टू ओपन इट, कि वहां भी लिखा हुआ है कि वेयर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स देयर रिमेन्स ओनली वन वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat। ये लिखा हुआ है ना, अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा shall be elected by the direct secret votes। But I mean आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं। सपोज 1 वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट पर आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख हैं, सिर्फ 10 वोट पड़ते तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते कि यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से। तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए। माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। आई वुड से कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड। तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ, कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल वो पैनल खत्म। तो ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना, डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं प्रोबेबली। फिर आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, ओ जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं, ये वो वगैरह, आपने कहा ये बस ये जी इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई। फिर सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको 1 वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स। अच्छा, टेक्नोक्रेट का अलग है, लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब। अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है सिस्टम। उस पे उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं, सो मैं
अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। नहीं, मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आप आ जाए। तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन में? तो मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे हैं करो करो करो, बाबा करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं, वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखें, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 एंड 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर बुक 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, एक्सेट्रा। The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं, आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज्ड यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज्ड आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज्ड आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं सेक्रेटरी वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज्ड आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज्ड आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल। 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट। नहीं, मगर देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एएनपी को भी प्रॉब्ली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली, वो तो है। वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिंचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में,
मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर। वो दूसरा आएगा कि मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है। हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ पर्सनली। क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। हम उनसे भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू आर विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। आई एम आर्ग्यूइंग मे बी contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much ji, and same to you sir. I will pass on some just to show that we were wanting to do that election. I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो ब्लैंक है, कुछ इस पे लिखा नहीं है। These are the ballot papers ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. बताओ, आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो। वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते अकॉर्डिंग टू द पैनल। ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है इज वन पैनल, वन प्रोविंसेस पैनल, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल। ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन, किसी नहीं पैनल कोई आया नहीं, तो फिर ये इलेक्शन नहीं हुआ। ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल। ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए। हाँ, आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डेप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया। आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो वही कर रहा है, वो भी 10 लेके आएगा बंदे। नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना, लड़ेगा। वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई। आपने कहा 6 पैनल थे सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज 1 पैनल, फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग। सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का, अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में
कोहेजन थी, कोहेजन नहीं, एक सोच थी, एक सोच थी उसको जो भी आप लफ्ज कह लें, यस ठीक है, ओके, सो दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट, जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था, बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया जस्ट टू रूल्स में, हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी। फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को, क्या मैं सिक्योरिटी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक। सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100। ये आपके आइन का रूल्स का, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स ऑफ ECP PTI। अच्छा, बुक कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100। जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time। ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500-525 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 होगा, पार्ट 1, ठीक। चलो आगे बढ़े जी। सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. नहीं, we are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जाने तो मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे, इमरान मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आपका एलिगेशन उस तब जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ, मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्होंने बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे, तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया। उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भी ठीक है।
तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, ना कोई ECP उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज़ खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्ज़ा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाजे हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। But for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिए तस्लीम। क्या कोई और लेटर है जो मैंने कॉपी लगाई है, ये तस्लीम नहीं की हमारे में। और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट, आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही we don't doubt that। ये तो पहले ही दिन, अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें, सही है? आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब, मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी लेकिन शायद उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ, ये ऐसी ऑन अ लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं, बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए चले कोई, अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए, ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब खुली किताब है। तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद। तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं, उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना, तो अच्छी बात। बेस्ट थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह एट लीस्ट वी आर गोइंग दैट वे। यू कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, आई कांट, बट आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इट as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. और देखिए, इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी, I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. चले।
Now, so basically, sir, coming, so I have tried to. नहीं, ये बात समझ गए. अगला point बताएं. Now, sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So, sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3). नहीं, तो Election Act में तो वही provisions हैं दोनों. नहीं, 17(3) जो है सर of the Constitution, वो provides कि source of fund जो है, not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3), do they have jurisdiction? जी, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3), वो तो read with Section 210. कौन फैसला यून करेगा इस बात का? ये सर 210, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है. लिखा है सर. तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट में मिलेगा जाकर के. नहीं लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 210 में. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है, a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial year. कहाँ से पढ़ रहे हो? To Section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना. जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है. तो इसी तरह तो फिर आपका आर्गुमेंट तो वही चलेगा इधर भी. अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है. लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी, ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी source of funds है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने एक ऑडिटेड अकाउंट. देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है. वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं. हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं. अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा. अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है. तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017. तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी. तो ये या मैं इसलिए कह रहा हूँ कह रहे हैं कि कोई भी पावर, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो. नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, जुरिसडिक्शन की और आइन की बात है. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ सो योर लॉर्डशिप विल सी दैट if your lordship turns to the election act itself, your lordship will see that there are various provisions in the election act where although election commission has been given jurisdiction under the constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the election act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया.
If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void hai, nahi hai, kya irregularity hai. Pura trial ka process detailed diya hua hai. And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या-क्या grounds हैं in which the turned election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। सर ये वो जैसे उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, it is not a party in existence. नहीं when enlisted political party तो subsisting political party की बात हो रही है, fails to file documents. But under subsection 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहाँ तस्करा आ रहा है। नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर। The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties. And it talks about a political party, one parta formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको enlist ही ना करे, फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे कैंसिल द एनलिस्टमेंट। इसका मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। सर अगर मैं ये मान लिया, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी। अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा। ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में। यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं, आईन में नहीं लिखा जी। तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे। ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था, ये जो आप बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, ये था। हाँ ये बात सही है, मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा, हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्यों बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज में टुकड़ा चाहिए। अब उसको इनकार अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं सीखता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी, तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना। 202 अगर आप देखें ये 5 जो हम पढ़े, एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर, तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है,
वो अवामी क्या नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद ही खत्म किया जी। आपका सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको। आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल। They have actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow inactions. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है आपको हम यू आर एलिजिबल। वो सर्टिफिकेट वाला आर्गुमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है। जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और अब आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मज़न नहीं नजर आ रहा है। राइट। सो नाउ आई वाज जस्ट आई एम रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल। सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज के 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154 156 all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208 your point is taken, it is not been specifically provided. They are saying it is, ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now sir, having said that, I will like to come to my second ground, which is के under article 17 the symbol, इसकी दो पार्ट है। symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है जी। So my submission is, your lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर। हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख़वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी। नहीं, आप ना जाइए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, तो दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, they won't take it. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है।
in effect, in my reading of the law. No, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates. If we can find a solution with the, if we give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज सर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means your lordship. नहीं क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3) ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती. क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब से. आपके कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर. कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा. वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए आपको मुझे नहीं चाहिए. नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं. इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. Not there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे हैं, हम लड़े इलेक्शन. How did the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने कोई भी सिंबल. एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि हम आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. नहीं, मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने PTI जो भी है एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law.
एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ पार्टी, so it cannot field the candidate unless it has a symbol, otherwise the candidate may belong ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है सर, बट अंडर व्हाट, एज इंडिपेंडेंट ना सर, नेचुरली। हाँ जी वही है सारा, बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है। आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ सर। देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी। एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी, उसका देखा आपने। मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें। देखिए ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है, I don't know. सर होगा ये कि लेट अस जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा? नहीं पता नहीं होगा, सबको पता होगा। वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट डजंट लाइक टू गिव ओपिनियंस ऑन मैटर्स व्हेन नोबडी हैज डिसाइडेड द इशू। इलेक्शन कमीशन हैज नॉट सेड दैट, हाई कोर्ट हैव नॉट सेड दैट। So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलग मिलेगा। हाँ। अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है या उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी? सब कुछ मिलेगा। अच्छा, सॉरी। You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया, खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पोजीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। किसने खत्म कर दिया पार्टी हेड का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है सर। मेरी पिटीशन तो ये थी, अब ये तो नहीं हो सकता कि आज इस तरफ करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते।
आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहाँ चले गए, वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात, आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज समथिंग दैट इफ यू टेक दैट अवे, माय सबमिशन इज कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। ये मैं कह रहा हूं। इधर आए। एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं आपको दिया, आई अंडरस्टैंड, आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म a political party, लेकिन there are number of penumbra rights that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case, and your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, it does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now, your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में, for the purpose of formation of the political party, restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल रीड फ्रॉम दिस जजमेंट बट आई एम जस्ट समराइजिंग दैट, कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स, ECP कैन वेट देम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो बेनजीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions, and the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. वी विल नॉट अलाउ दैट. दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416.
उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस, उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा, बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा। अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट। PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66। इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना। इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, यानी पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना। जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66। हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66 your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर लें जी, स्लो डाउन हो गया जी। your lordship can turn to page 69 last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन। कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा। आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं, मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है। वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं। मेरी ये आर्ग्यूमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो। मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता। करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया। देखिए उनकी जो एंजाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म। सर वो तो देखें, मैंने इलेक्शन कराया, उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं ये। मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया। नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये
हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफ़ा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीज़ें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक। दिखा दिया आप, मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया। नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है, वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स, बट सर दीस आर इंपॉर्टेंट। इसमें व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द लॉ, द स्कीम ऑफ द लॉ। कैन अ लॉ प्रोवाइड कि आप सिंबल ले लें, कैन इट बी इंटरप्रेटेड इन दैट वे? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं, वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दे, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी कानूनी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर जी। मेरी सबमिशन ये है, समझ गए आपकी बात, कोई नया पॉइंट बताएं ना अगला। So ये point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी, a few days ago I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। एंड आर्टिकल 62(1)(f आपने कहा कि वो 62(1)(f जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ, हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। मेरा जजमेंट था अभी आपने जो 62(1)(f का दिया शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा वो वाला 62(1)(f। ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल एक बंदे के लिए भी। तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है। यू हैव टू गिव द सिंबल। और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को
बचाना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। यस, मैं इमेजिन करता हूँ बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें। Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी सर, you wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं। उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें। उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर। Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। Correct. देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल फील्ड। अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई। अब एक तो वो हम क्या करें, उसका हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से। इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं जी। तो एक तो ये होगा, देखिए अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं। धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया, कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया। हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं, इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली, आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में। अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, तो नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, यानी कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन करा लें, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूलिया आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, सिर्फ हमें शायद बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है
कि the principles should stand the same whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट किया कि आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should. मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई आगे बढ़ते हैं. जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73. और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. जी. और इस जजमेंट में ये दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट. सो almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights. And वो कॉन्सेप्ट लेके आए फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स भी एक चीज होती है, एंड दैट हैज टू आल्सो बी रेड इनटू आर्टिकल 17. और पॉलिटिकल जस्टिस का प्रीएम्बल में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519. And then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहाँ बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol even if I have done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I am quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials.
पावर दिए मैंने उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो नहीं वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आप, या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो आई एम नॉट, दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर। ये 200 दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस। टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता जी, प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये रिपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली a court of law can be abolished by law. जी, statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का इसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। आई डोंट थिंक सो, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे नहीं आएगा, इट विल हैव इट्स ओन जुरिसडिक्शन, दे विल हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन। नहीं बट सो अपनी अपनी जुरिसडिक्शन में दे आर किंग्स। सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिसडिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है। टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ जनरल इलेक्शन, लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिसडिक्शन को हो सकती है, मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। करेक्ट। सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, बाय लॉ नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लिनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का, भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute। और साहब that is all right, हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, we want it fixed
My lord, we want it fixed. My lord, it will be. It will. It will. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं सिर्फ we are hearing नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, अभी हमने कहा ना, if he doesn't, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जारी है। तहरीक इंसाफ के वोकला अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं बराबर हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस का। खूबसूरत सा दिन है, नीला है आसमान। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप, और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल करी शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। हो स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर, सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, हर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप, और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। जी सर, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well established. ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में, जी वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए, ये इसका जवाब देते हैं। जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हेयर। वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में,
लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं। वो आपके गुजरांवाला के सदर है जी। होगा सर, होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उससे ताल्लुकी का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया, फिर वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूँ। अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है। वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू, मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया, अपना दे दिया। वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर वो दूसरी जो 2 पिटीशन है उसकी बात थी। जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट, वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पिशार, वो लिस्ट नहीं लेके गए। दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस। It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के हैं, KPK के। So अगर नुकसान के होते तो आप नुकसान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना, पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब लगता है तो वी विल डू दैट, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद दिस एज वी स्पीक। So वो एक but just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one। नहीं हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP I think I don't know why। नंबर बताता हूँ आपको 8117120223
which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं? If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Actually, could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लगाई नहीं है शायद नंबर देख। आगे सर, अब आगे आज जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं. But if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. He's not conceding. He's contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, so my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी. How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment
so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your Lordship will see that if your Lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68। मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये, आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें। मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलूँगा बात है तो वो पढ़ लेना। ठीक है सर। मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें, कौन सी PLD 2009 CLD 1498, ये LPG एसोसिएशन केस है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड 1 9। ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी, वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं। आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि दैट डज नॉट। आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर। माई प्रोपोजिशन इज इफ देयर आर 2 concurrent jurisdictions of high courts, and पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि हमारी प्रोविंसेस हैं, ठीक, टू मी ईच हाई कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस, ठीक। Now, if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number 2, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court, and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. But maybe say suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी। अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी, उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी। ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल। वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल सही। अगर तो एक हो सकता है कि 2 अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन। It is very straight. I'm very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इस तरह हर election होता है सर। If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar from here. Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं सर। या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटीशन है, मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहाँ के लोग खुश नहीं है, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। सर लेट मी पुट इट दिस वे, Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order.
He is agreed by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. The party है sir उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. जी. Après vous, क्या है French में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए मगर उनका objection ये था. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and they are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645 पे. जी 645. नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I'm very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे. जी. उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता. या तो say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो. हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें. आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. We have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं declaration with regard to their order election commission का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं. ठीक है. पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते. कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since inter-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayoub's and all these people who went to Peshawar against whom? ECP and the 14 people in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. अच्छा और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिस्डिक्शन थी या नहीं ये बताएं. लाहौर के पास जुरिस्डिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी.
तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी, नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात है। देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं। एक आप चले गए उधर, आप कैन फोर्स मी टू गो एनीवेयर। वी एग्री विद यू, यस, बट आई एम नॉट गोइंग टू पेंडिंग, जी इट्स स्टिल पेंडिंग टिल टुडे। आई थिंक इट्स अ सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow, Ji, the Lahore High Court, 5 judges say, Ji, that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं अब तो सर देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन गलत है, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला। If I persist with the case, आप पे नहीं है अब कोर्ट ने उसके नोटिस ले लिया, तो उसमें देखिए उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ECP ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। ये आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो बिल्ड हो, आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your I will not be at all. That would be very it's a great. question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? नहीं, we challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया। नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई। नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गया, वो नहीं रहे अभी, तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी। फिर So that is what I'm saying, आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म। गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हम कहेंगे नहीं। नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का। बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ। सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा, इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटेंगे, वो कहते हैं कि मैं नहीं। चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है, पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल, यू कांट हैव री-इलेक्शन फॉर अ पैनल। तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स राइट। If he doesn't, then he doesn't. Okay. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितने बोले? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one कि intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए इसलिए चले आप ये कह सकते हैं। नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए नहीं, दिखाएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई, प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये, आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे नहीं पता। दैट इज नॉट द इशू। नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताएं ना। वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाए सर। कौन सी हाँ इसी पेपर बुक में इनकी लगाया पेपर बुक में। मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक में अभी है 853। मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है। जी बता दीजिए। इन व्यू ऑफ सच प्रोविजंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009, and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any political party. रूपा के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है? 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटीशन? ये हुमायूं अख्तर। ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने। पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akhtar Guraya, wherein the petitioner in the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये?
जी 2002 पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी इसके तहत हुआ। जी उसके तहत हुआ। It is. चलिए खैर, I can't follow this. जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हाँ हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। थोड़ा ये भी वही है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़े मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान Are you saying कि whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ तो वो भी नहीं है। वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है। पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, बट would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, देखिए ना, nor can they establish elections were not held. जी. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say no. This is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटिशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन, बारीकियों में चले गए। ठीक। तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है। हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स पे बैठे रहे, कोई आया नहीं। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। Your Lordship, next point is where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक. जी. Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं, and Mr. Umar Ayub is not a party secretary. Mr. असद उमर जो हैं सर, वो actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी. क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign किया, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? नहीं, he as an office holder. बाद में सब वो भी रिजाइन किया, पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी भी छोड़ दी। I've been informed that he's left the party now, but so the point being, he was the star of your party. जी, star थे ना? Yes, he was, I think.
एंड आई मीन जो भी उनको मजबूरी होगी, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़ेह तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, अनलेस दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। नहीं, इट इज, हाँ इट इज करेक्ट। फिर उन्होंने तो रीजन दिया है जी, उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ May 9th उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए। बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन। जी, तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर, जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे। हम दूसरी तरह से देख रहे हैं जी, व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे। ही मीन्स इट, क्या नाम इनका, असद उमर। व्हाई शुड ही नॉट लीव, व्हाई शुड ही स्टे एंड द अदर्स लीव। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, बट ही ऑप्टेड आउट। अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं सर? बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी किसी और ने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो। कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है। ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो। हो सकता है बहुत खुश हों, इलेक्शन कराए, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे हैं। फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शंस कराए से। So sir, to sum up, keeping in view the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there's an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है। Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट दे दें और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल। अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स देयर हैज बीन डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज नोबडी एल्स हैज बीन एवर चैलेंज दैट। इसको आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया। डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी स्कूल ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर। और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं। सर पढ़ लेते हैं सर, 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं। उसमें पढ़ी, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने जी मैंने पढ़ा, वो खोले हैं उनका। उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं। प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट। नहीं आप जरा देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी। 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना, मई का नोटिस है। मैं आपका क्या ने पेज था बताएं? 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है। 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी। नहीं सर वो बात कर रहे हैं, आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए हैं मैं वो देखना चाह रहा था। I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। Conduct of intra-party elections. जी ठीक है। Attention is drawn so and so 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 conduct. सर अगर ना करूं मैं, let me put it this way, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया?
बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना जी। चले मैं वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूं कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाएं। एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना कि एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धंधनाता फिर रहा हूं कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना। चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया, बट मैंने करा लिया। आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2 3 4 10, ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रूव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में। दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन। अब लास्ट पे मैं दिखाता हूं सिर्फ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमें देखने की जरूरत ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं। फिर ये कौन चेक करेगा? ठीक, पढ़ लेते हैं सर। So, who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहे हैं कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चलें, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं। तो ये बहुत अब हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहें ना वायरीज आपके सामने है ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज अब्सर्ड, आई स्टिल इंसिस्ट। पेज भी 25 आई विल स्टार्ट रीडिंग, पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is 100% we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। Doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. नहीं कर सकता। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। एंड योर लॉर्डशिप इज नॉट गोइंग टू डिनाई अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will deny. Of course, we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर। जी।
अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर, एंड आई स्टिल से कि इट इज अ वॉइड ऑर्डर. सो इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे. Now let us look at 15 para. Before embarking आपको on, अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी आप एक इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे. नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए. हमने ही कहा एंड में. आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए. मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं. एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन. लेट मी फिनिश दिस. कौन सा पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the 18 पे आ जाते हैं. 18 पे आ जाते हैं. ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ mutually destructive हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो authority कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको show cause दे के exercise किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ judgment की. अब देखें judgment के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में contrary हैं to the findings of the learned judges. With respect, it is not. Destructive हैं वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honourable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honourable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter,
on existence of jurisdictional fact, it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable, provided essentially against हो गया ये. चले against नहीं हुआ सर, ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no तजाद and for saying frankly, this is the law. ये तो law कह रहे हैं, ये law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा, खैर, you can't be responsible. नहीं, but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें, वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of an election political party. It is envisaged by section 2. आप देखें, वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें. ये पढ़ने से मैं ख्याल ये बड़ा जाए शख्स, ये जजमेंट के चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं. जी, पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ECP ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने, या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं आप पूछ लें. नहीं, हम आपको आप देखें, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी, अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे. जी, पेपर बुक पे. जी, ठीक है. जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी, that in the impugned order, ये वाला जी. Thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब paragraph 4 पढ़ लें. According, इसको छोड़ दूं बाकी. हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. जी, सही है ना? जी. अब आप अपनी prayer clause में आ जाइए. आपको अब कौन-सी declaration seek करना चाहिए कि my elections were गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे. जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूं जल्दी से. नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं. ठीक है, अब मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूं जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूं. चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end.
That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप specifics में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो primary declaration है, where I think is the most important declaration on the election, because ये इधर-उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man चले, फिर इस वक्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी आपको लिए चलते हैं बहावलपुर, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। मुआशी मुआहिदा के बारे में बताना है कि अगर पीपी का हुकूमत होगा तो मेरा पहला वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तनख्वाहों में ना सिर्फ इजाफा करूंगा, मैं डबल करके दिखाऊंगा। अब बताएं, आप बताएं, भावलपुर के अवाम को बताएं कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट बिजली मैं मुफ्त पाकिस्तान के गरीब अवाम को दिलवाऊंगा। आप यहां के अवाम को समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो हम ना सिर्फ आपके लिए मुफ्त और मयारी तालीमी इदारा खड़ा करेंगे, मैं ना सिर्फ यहाँ बावलपुर में IT यूनिवर्सिटी का क़याम करूंगा, मगर मुल्क भर में इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्त तालीमी इदारे खड़े करेंगे। आप बताएं कि इंशाअल्लाह ताला आप अपना हुकूमत बताएं, आप तीर पे थप्पा लगाकर अपना हुकूमत बनाएं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने सखर में NICVT का मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल बनाया है, जैसे मैंने खैरपुर में मुफ्त लिवर का, मुफ्त किडनी का, मुफ्त कैंसर का इलाज करवा रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला इसी भावलपुर में मैं NICVT का मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल खड़ा कर दूंगा। हम आपके हर डिस्ट्रिक्ट पे हम आगाज शुरू करेंगे तो जनूबी पंजाब से शुरू करेंगे और जनूबी पंजाब का हर इजला को मैं मुफ्त हॉस्पिटल दूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला हम बाकी पंजाब का हर इजला में मुफ्त हॉस्पिटल कायम करेंगे। साथियों, आपको याद है ना कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम था तो कायदे अवाम ने किसानों को अपना जमीन का मालिक बनाया। याद होगा कि कायदे अवाम जब वजीर आजम था तो 5 मरहला स्कीम दिया था आपको, 5 मरहला स्कीम पूरा पाकिस्तान में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लॉन्च किया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम लेकर आई थी। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपना हुकूमत बनाएं, अब तीर पे थप्पा लगाए ताकि मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बनाना चाहता हूं। आपने हमें इलेक्शन जितवाना है ताकि मैं ना सिर्फ बावलपुर के गरीब अवाम को पक्का घर बना के दे सकता हूं, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मालिकाना हुकूक भी उस घर का खवातीन को दिलवाऊंगा। और ये वो खान साहब की तरह वो झूठे वादे नहीं है। मैंने सिंध में अपना ये प्रोग्राम शुरू किया है, सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं और उनका मालिकाना हकूक सिंध के औरतों को दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 पे आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, मैं यहां बावलपुर के गरीब अवाम को भी घर बना के दूंगा, उनके खवातीन को हकूक दिलवाऊंगा। और ये 30 लाख घर के साथ मैं आप से ये भी चाहता हूं कि आप हर कच्ची आबादी में पहुंचे, कच्ची आबादी में रहने वाले हर शख्स के पास पहुंचे, उनको बताए, मेरा पैगाम पहुंचाए कि इंशाअल्लाह ताला
इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा तो हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहां रहने वालों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग कच्ची आबादी में रहते हैं और परेशान होते हैं कि पता नहीं कब कौन आएगा और हमसे हमारा छत छीनेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं उनको मालिकाना हुकूक दिलवा के ये सुकून दिलवाऊंगा कि उनका अपना घर है, उनका अपना ज़मीन का, उनका नाम का है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे, हम बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। और भी आपने घर घर पहुंचना है, आपने बताना है कि पीपी का हुकूमत आएगा तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो वसीलाए हक, वसीलाए रोजगार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत के शोबे हैं, वो भी हम अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गरीब तरीन औरतों को ये मदद पहुंचाएंगे। और साथ साथ हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपने तरीके से मुआशी तौर पे हमारा मईशत में भी कंट्रीब्यूट करे और अपने घर को, अपने बच्चे को हमने पिछली बार हम हुकूमत में आए थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। इस दफा आप तो मर्द है, आपको कैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिले? मैं आपको बताता हूं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ आपके लिए भी कुछ लेकर आ रहा हूं। सुनो, हम इंशाल्लाह ताला, आप मेरा पैगाम लेके जाए, तमाम मजदूरों को बताएं, इस मेहनत करने वालों, मेहनत कशों को बताएं कि इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो हम बेनजीर मजदूर कार्ड भी लेकर आएंगे और अपने मजदूर भाइयों को उनका मेहनत का सिला दिलवाएंगे। आप मेरे किसान भाइयों को बताएं कि इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा तो मैं बेनजीर किसान कार्ड के नाम पे इस मुल्क के हारियों को, इस मुल्क के किसानों को बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू अपना आपकी जेब में मैं माली मदद पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हम आपको इसी कार्ड के थ्रू अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है तो इस कार्ड के थ्रू आपको मिलेगा, अगर आपको बीज पे सपोर्ट देना है तो किसान कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे। हमें इंशाल्लाह ताला इस किसान कार्ड के थ्रू मैं क्रॉप इंश्योरेंस भी शुरू करूंगा ताकि अगर किसी कुदरती आफत की वजह से मेरा छोटा किसान को कोई नुकसान हो तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका इंश्योरेंस होगा और उनका नुकसान इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। और मेरे नौजवान साथियों, आप नौजवानों को समझाएं कि वो अपना वोट जाया ना करे। आप नौजवानों को बताएं कि तीर पे थप्पा लगाए ताकि मैं जो नौजवान के लिए यूथ कार्ड लेकर आ रहा हूं और यूथ सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहता हूं, इससे इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ नौजवानों को, गरीब तरीन नौजवानों को माली मदद पहुंचाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको रोजगार दिलवाएंगे, वो तमाम स्किल्स आपको सिखाएंगे जिससे इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख है कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान के अवाम को मिला है। इंशाल्लाह ताला इस बार जब आपका हुकूमत बनता है तो जब हम यूथ कार्ड लेकर आते हैं तो नौजवानों को न सिर्फ हम माली मदद देंगे मगर उनको रोजगार भी दिलवाएंगे। और 10वीं जो मेरा आखिरी वादा है वो हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि कोई भी भूखा सोए, तो
तो इंशाअल्लाह ताला हर यूनियन काउंसिल से मैं ये भूख मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह करूंगा और गरीब अवाम के लिए इस भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू हम गुर्बत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो स्कूल्स में भी बच्चों के लिए हम मील्स का बंदोबस्त करेंगे, नौजवानों के लिए जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 दिन के लिए हम उनके वालदा को माली मदद पहुंचाएंगे ताकि वो खुद भी और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये मेरा मंशूर है। मैं इन 10 नुकात पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप हमारे पैगाम घर घर पहुंचाए, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी और मैं और आप मिलके अवामी हुकूमत कायम करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहीदों का जमात है, हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। हमारा अगर मुकाबला है तो इस बेरोजगारी से है, इस गुर्बत से है, इस महंगाई से है और इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अवामी हुकूमत बनाया जाता है, कैसे हुकूमत गरीब का ख्याल रख सकता है, किसान का ख्याल रख सकता है, मजदूर का ख्याल रख सकता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसमें ये सलाहियत है कि हम ये काम कर सके। हमारा तारीख हमारा गवाही देते हैं कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो हमने अपने तमाम वादे पूरे करके हम घर जाते हैं। अब आजकल इलेक्शन का सीजन है और पंजाब पे खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है। आपको मालूम है कि मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगा। अगर आप चाहते हो कि अवाम दोस्त हुकूमत बने, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करे, आपके मसाइल का हल करे, तो आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे ये जिंदगी और मौत का मसला है। इसलिए हमारे पास ही वो तमाम मंशूर और प्रोग्राम हैं जो मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आप अगर किसी भी सियासी जमात को देखें, आप मुझे बताएं उनमें कोई दिलचस्पी है आपका मसाइल हल करने का? उनको एहसास भी है कि कितना महंगाई, कितना गुर्बत में इजाफा हो रहा है, कितना बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उनका सिर्फ शौक अगर है उस कुर्सी का, और उस कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो उन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इसका नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो मुल्क में ये नफरत की सियासत को, ये तकसीम की सियासत को, ये अब पुरानी सियासत हो चुका है और हमने सब मिलके इस पुरानी सियासत को हमें दफन करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई सियासत शुरू करेंगे, हम एक नई सोच के मुताबिक
सियासत करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि अवाम की खिदमत करे, जिसका मकसद ये होगा गरीब की खिदमत हो, जिसका मकसद ये होगा कि मेरा किसान, मेरे मजदूर, मेरा नौजवान का खिदमत हो। जो भी सियासी जमात है, एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है, वो वाहिद सियासी जमात है जो इश्यूज की वजह से, जो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आपने फरवरी 8 को तीर पे तप्पा लगा के ये साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। मेरा जो इस इलेक्शन में बावलपुर डिवीजन से या बावलपुर जिला से जो मेरा उम्मीदवार हैं, बिल्कुल गिलानी साहब भी हमारा उम्मीदवार है। अली हसन गिलानी साहब को आपने जितवाना है। अगर आप तीर पे मोहर लगाएंगे तो अली हसन गिलानी साहब को भी आप जितवाएं। हाफिज हुसैन मादनी साहब जिसने मुझसे पहले तकरीर किया है, वो मेरा नुमाइंदा है, भावलपुर से तीर का उम्मीदवार है। आपने हाफिज साहब को जितवाना है। मलिक शाहरुख मेरा भाई है, आपका उम्मीदवार है नेशनल असेंबली के लिए भी, तीर पे भी और एमपीए पे भी। तो आपने तीर पे थप्पा लगा के मेरे उम्मीदवार को जितवाना है ताकि मैं आपके काम आ सकूं, आपके मसाइल हल कर सकूं। आपने अब्दुल मजीद चनर साहब को जितवाना है, तीर का उम्मीदवार है। नसीम शाह साहब को, अमीम शाह साहब को, रफतुर रहमान साहब को, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को, ततीरुल हसन साहब को, गर्देजी साहब को, तमाम आपने 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगवा के पीपल्स पार्टी को जितवाना है। शहीदों का जमात को जितवाना है, किसानों का जमात को जितवाना है, मजदूरों का जमात को जितवाना है, भावलपुर का जमात को जितवाना है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को जीत आपकी होगी और फरवरी 9 को हम हुकूमत बना के आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। जिए भुट्टो। हाँ, जफर वराइट साहब कहीं स्टेज पे, हाँ जी, जफर वराइट साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ शामिल हो चुका है मगर इंशाअल्लाह ताला रहीम यार खान से भी एक हमारा उम्मीदवार होगा। जफर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। थैंक यू।
भुट्टो बहावलपुर में पीपल्स पार्टी के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि आप हमें इंतखाबात में मौका दें तो हम अपने तमाम वादे पूरे करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर पर ख़ास फोकस है। मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनका लाहौर पर ख़ास फोकस है और इस बार पंजाब का वज़ीर आला भी जियाला होगा। उनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने 10 निकाती एजेंडे पर अमल करे तो मेरे साथ मिलकर जदोजहद करें। तालीमी इदारों में मुफ्त तालीमी सहूलियात फराहम करूँगा। 30 लाख घर बना कर दिखाऊँगा। लाहौर में 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़ हो गया है। फेस्टिवल के पहले रोज़ 25 मुख्तलिफ सेशंस में नामवर इल्मी, सियासी और अदबी शख्सियात ने इज़हार ख्याल किया। Very much. First of all, let me thank Yaqub Bangash as well as the Think Fest for providing this opportunity to discuss this book. This is a work of 2 years, very solid research done with the help of 3 PhD students at IBA Karachi. And one of the difficulties was to find comparable data, because this is empirical data which is driving the entire thesis of this book. So one of our difficulties was to find apples for apples, not apples for oranges. And that was a big task. And I don't think, surveying the literature, anybody has done 75 years of comparative analysis. There are partial analysis for 25 years or 30 years between India and Pakistan, but nobody has done a consistent story of 75 years. So that was the major task. The book was launched at Dhaka and Chittagong and was very well received. And I was very happy that the comments from the economists in Bangladesh were very positive. I also had the opportunity of discussing with the Indian economists. I couldn't get the visa, otherwise the book was going to be launched in New Delhi, but it was quite late. The visa was not approved. So there was very positive feedback from Indian economists who participated at the conference in Lums. So this is what the background of this book is. For the youngsters who really always presently hear the doom and gloom story of Pakistan, let me put it in the context. In the first 40 years of 1947 to 1990, Pakistan was one of the top 10 developing countries in the world, way ahead of India and very much ahead of Bangladesh, which had come into existence in 1971. Pakistan was growing at 6 to 6.5% per year, despite the fact that we did not inherit a single industrial unit. We didn't get any money out of the reserves of the British India. We had to accommodate 8 million refugees in a country of 32 million. We didn't have the food to feed our population. We had a war with India in 1965. We had the separation of the country in 1971. We had nationalization of our industries and educational institutions in the 1970s. We had the Afghan war in the 1980s. Despite all these shocks, Pakistan was way ahead of India and Bangladesh. And then the decline started. And now we are a laggard as compared to both India and Bangladesh. So what this book tries to do is to distill some critical success factors. And I'll be very brief. It will be a bullet point, but I'll be very happy to answer any questions and elaborate these points.
after my discussions. लाहौर में थिंक फीस्ट का आगाज़ हो चुका है। आज पहले सेशन में साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने भी खिताब किया। साबिक वज़ीर ने नुमाइंदा बोल जाफ़र बिन यार से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, जाफ़र से इस बारे में जान लेते हैं। बताइएगा जाफ़र। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का जो है इनकाद हो चुका है। इसमें पाकिस्तान के जो नामवर सियासतदान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। पहला सेशन मुकम्मल हुआ है और उसमें जो साबिक़ वज़ीर आज़म के अलावा साबिक़ वफाकी वज़ीर थे मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने जो है शिरकत की और यहाँ खिताब किया। मुफ्ता इस्माइल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। सर, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा, फीस्ट जो थिंक फेस्टिवल जो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस बात? ये हर साल होता है, पिछले 5-6 साल से बड़ी अच्छी कोशिश है याकूब बंगश साहब की और दीगर लाहौर के शहरियों की कि जो लाहौर के अंदर दुनिया भर से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से और दूसरे ममालिक से, इस बार मिडल ईस्ट से ख़ास तौर पर लबनान वगैरह से, क्योंकि ये गज़ा के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, नाजायज़ हमला किया है, तो इसकी वजह से दुनिया भर से मंदोबीन आए हैं और मेरे ख्याल से एक बड़े अच्छी डिस्कशन होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी जमात पाकिस्तान में ऐसे जो गुर्बत का खात्मा करेगी? महंगाई से लोग तंग है, बिजली के बिलों से, गैस आ नहीं रही। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी एक जमात आप समझते हैं कि वो आ जाए और सारे मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और ऐसा कोई जमात हो ही नहीं सकती है कि जो पाकिस्तान को 2 साल में, 4 साल में गुर्बत से या जहालत से आज़ाद करा दे। ये बात तो समझनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो जमातें हैं, जो भी बड़ी जमातें हैं, वो कोई भी आवाम के मसाइल की इतनी बात तो नहीं कर रहा है। कोई जमात कह रही है, मिसाल के तौर पर मियाँ साहब आ जाएंगे तो चौथी मरतबा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी ये नहीं बता रहे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दे दूँगा, जो कि मेरे ख्याल से 85% पाकिस्तानी हाउस होल्ड को बिजली फ्री दे देंगे। कहाँ से पैसे आएंगे ये नहीं बता रहे। तो इस्माइल साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उनका यही कहना था कि तमाम कोई ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क के मसाइल, लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश कर रही हैं। सबके अपने अपने जो है मौज़ूआत है। साथ ही इस्काम पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ऐसी जो वो लोगों के लिए उम्मीद बनकर नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र, आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो केस ज़ेर समाअत है, इसकी समाअत में वक्फा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत जारी थी। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की, तहरीक इंसाफ के वकला ने अपने दलाइल दिए। हमारे अख्तर केस में इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पार्टी इंतखाबात केस में मुदाखलत नहीं कर सकते और जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो 2009 का है। पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और इस वक्त इसमें वक्फा है। और ये भी आपको बताएं कि उस 2009 के जो मिसाल दी गई है, जो हवाला दिया गया है, उसके हवाले से उनका कहना था कि कानून में कोई फ़र्क नहीं आया है। वकील PTI अली ज़फ़र ने ये आर्गूमेंट दिया इस पर। PTI में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, इस तरह तो आप आमरीत की जानिब जा रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल BOL न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे वक्त आते हैं, अपना पैनल देते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो यकीनन वो इलेक्शन लड़ने की अहल थे, हम उसके ऊपर इतराज़ ना करते। अब अदालत की जानिब से फिर ये भी उनसे सवाल किया गया, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है इंटर पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का, क्योंकि कानून सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास एक ही हथियार है कि अगर आप इलेक्शन ना करवाएं तो वो आपका इंतखाबी निशान वापस ले ले, और उसी हथियार का इस्तेमाल किया है। ये जजेस की जानिब से ऑब्जर्वेशन थी। तो अली ज़फ़र अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि इलेक्शन कमीशन बतौर ट्राइब्यूनल इतने बारीकी से जायजा नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 175 सियासी जमातें हैं, किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इतनी बारीकी से जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और ANP की भी मिसालें दी, कहा कि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी सारे बिला मुकाबला हुए थे। इवन कि उन्होंने कहा ANP के जो ज़िलाई सदूर हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। तमाम जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से उनको ये जवाब दिया गया कि PTI का जो आइन है उसके मुताबिक इंतखाबात दुरुस्त नहीं है। अली ज़फ़र का ये मौक़िफ़ है सारे मामले में कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंतखाबात को गलत नहीं करार दिया, बल्कि उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, उनकी तैनाती को गलत करार दिया है, जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ इंतखाबात को कलअदम करार दिया बल्कि इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया है। अब ब्रेक के बाद अली ज़फ़र अपने मुख्तसर दलाइल को कंक्लूड करेंगे, जिसके बाद मखदूम अली खान और हामिद खान अपने जब वो जवाब पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल, आगाह कर रहे थे।
आईजी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर के घर जो टीम गई थी वो वापस आ गई। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि कोई सामान चोरी नहीं हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर की जो शिकायत होगी उसे हल करेंगे। हमें इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौहर का घर है। जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बैरिस्टर साहब जैसे कहेंगे, जो अगर उनकी कोई शिकायत होगी हम उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अगर पुलिस के किसी अफसर की तरफ से कोई ज्यादती हुई है तो हम उसका पूरा हिसाब भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। बैरिस्टर साहब के घर पे जो टीम गई थी, जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बैरिस्टर साहब जैसे कहेंगे, जो अगर उनकी कोई शिकायत होगी हम उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अगर पुलिस के किसी अफसर की तरफ से कोई ज्यादती हुई है तो हम उसका पूरा हिसाब भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। इस्लामाबाद का कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर पर जो टीम गई थी वो वापस आ गई है। कोई सामान चोरी नहीं किया गया, उनके घर में किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं की गई है। हमें नहीं पता था कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है। जैसे ही पता चला, जो टीम उनके घर गई थी वो वापस आ गई। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर जो टीम गई थी वो वापस आ गई है। कोई सामान चोरी नहीं किया गया, किसी किस्म की तोड़फोड़ नहीं की गई। जैसे ही पुलिस टीम को मालूम हुआ कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है, वो वापस आ गए। आपको हम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर जो टीम गई थी वो वापस आ गई है। कोई सामान चोरी नहीं हुआ, किसी किस्म की तोड़फोड़ नहीं की गई है। और जैसे ही पुलिस टीम को मालूम हुआ कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है, वो वहाँ से वापस आ गए। इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर जैसा चाहेंगे हम उनसे तामुन करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। आलिजा, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? देखिए, आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे सबसे कुछ देर कबल और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि बैरिस्टर गौहर के साथ जो हुआ है उसकी तफ्तीश जारी है और हम इसकी मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। बैरिस्टर गौहर के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। ये शायद कुछ गलतफहमी का मामला है और कोई जानबूझकर बैरिस्टर गौहर के ऊपर हमला नहीं किया। और मामले की तफ्तीश के जो भी तय होंगे वो मीडिया के सामने रखेंगे। अब दोबारा आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिजा, आगाह कर रहे थे। कुछ लम्हे पहले आईजी इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर पर जो टीम गई थी वो वापस आ गई है। पूरा स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुँचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। कोई ट्रेंडिंग पे तो कोई लगा है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पे। इनको साहब कहना बंद करे, ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, खासतौर पे केपीके के डीएसपी को। काजी भाई साहब स्लो नहीं आ रहे। आंख खुले और कुछ ना दिखे, समझे बत्ती नहीं आ रही। तंजो मिजाज का ग्रेनेड लिए करने आए हम आपको आदाब। आप भी तो कुछ बोलो जनाब। बोलो जनाब, बोलो जनाब, जुम्मा ता इतवार रात 11:03 पे सिर्फ बोल न्यूज पर। दुनिया बोल है, व्यापार बोल पाकिस्तान। अब पता चला तज्जिया ऐसे नहीं चलेगा, अब बात होगी। बस बहुत हो गया तब्दीली। बोलो जनाब,
सिर्फ बोल न्यूज। कराची से खैबर तक बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का दौरानिया बढ़ा दिया। उम्मीदवार शाम 7 बजे तक पार्टी टिकट जमा कराकर इंतखाबी निशानात अलॉट करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वक्त में तोसी उम्मीदवारों और सियासी जमातों की सहूलत के लिए की गई। शिकारपुर में थाने की हुदूद में जाफरी कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग, एक शख्स कत्ल, लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग देरीना दुश्मनी पर की गई। कोलंबिया में शदीद बारिशों के 22 लैंडस्लाइडिंग, 18 अफराद हलाक, 35 से ज़ायद जख्मी। मेरिलिन और क्यूबडो को मिलाने वाली शाहराह आर्जी तौर पर बंद। खूबसूरत सा दिन है, नीला है आसमान। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी। हो स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर, सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, भर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रस्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को ओसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ ओसाका बैटरीज। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और बड़ी अहम खबर है कि लाहौर चैम्बर की जानिब से एक मुतालबा FBR से किया गया है कि FBR SRO में तरमीम की जाए और इस तरमीम को फौरी तौर पर की जाए, चूँकि इससे बड़ी तादाद में जो रिटेलर्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और इससे मुतालिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने चेयरमैन FBR रेवेन्यू को एक ख़त भी लिखा है और इस खत में उन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और जो टेक्निकल जिन बुनियादों पर उनका ये मुतालबा है वो तमाम चीज़ें लिखी हैं और इसको वक्त की ज़रूरत और इस वक्त का बड़ा अहम तकाजा भी करार दिया। अब इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त काशिफ अनवर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर भी हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्यों ये तरमीम चाहते हैं और ये तरमीम इस वक्त क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया साहब, काशिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो बताइएगा जो खत आपने लिखा है इसकी बुनियादी वजह क्या है, जिस तरमीम की आप डिमांड कर रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर आप ये तरमीम चाहते हैं? देखें, बात ये कि हम ये नहीं कहते कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारा शुरू से मुतालबा यही है कि वो ही पिस्ता है और उसी के लिए मसाइल पैदा होते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। अब ये वो रिटेलर्स हैं जो इससे पहले विद होल्डिंग करवा रहे थे अपनी, और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो उनकी विद होल्डिंग कर रहे थे। अब हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब आप रिटेलर्स को उनकी टर्नओवर को बढ़ाइए, उनके टैक्स को कम करिए, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों और वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस को करें। अब पहले वो 1000 स्क्वायर फीट का मसला था, अब वो बड़ी मुश्किलों से पिछले 2-3 साल के बाद उसको खत्म करवाया है। अब ये विद होल्डिंग का आ गया है। तो हम जहां पर ये आसानी मांग रहे थे कि उनकी जनाब टर्नओवर्स को बढ़ाया जाए, उनकी टर्नओवर्स को कम करके 2 करोड़ कर दिया गया है। तो रिटेलर की, एक आम रिटेलर की जो डॉक्यूमेंटेड है, अगर आप उसकी टर्नओवर को कम करते जाएंगे तो देखिए ओवरनाइट सेल्स टैक्स में आना आसान नहीं है। ओवरनाइट आप अगर ये कहें कि आप बिल्कुल इनकम टैक्स से आप सारे सिस्टम को ही चेंज कर दें तो ये रिटेलर्स इसको कर ही नहीं सकते। तो ये अभी हम जहां या तो देखें, बात ये है कि हम तो अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
हम तो ये बात कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। जहां पर लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि जनाब रिटेलर्स जो हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, फिर उन्हें देखें एडवाइजर्स रखने पड़ेंगे, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप बिल्कुल करें। देखें, इससे पहले जो आपने चेन ऑफ स्टोर्स पे किया है, आपने इससे पहले भी जिन सेक्टर्स पे किया, दे आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अगर आप एक रिटेलर को आप कह देते हैं कि जनाब अब आप पीओएस लगाएं और सेल्स टैक्स में आए, तो मैं ये समझता हूं कि ये काफी प्रॉब्लम पैदा होगी। अच्छा, तो काजी साहब, जाहिर है आप ये तो नहीं चाहते ना कि रिटेलर्स टैक्स नेट में ना आए। आपका ये मुतालबा है कि उनके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा आसान करके उनकी सहूलत के साथ उन्हें मौका दिया जाए कि वो भी इस टैक्स नेट में आ सकें और इस टैक्स नेट को भी बढ़ाया जा सके, चूंकि जाहिर है कि ये भी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त की। देखें, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि आप रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर ना आए। बिल्कुल रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, रिटेलर्स की टर्नओवर्स को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि देखें, सेल्स टैक्स का जो निजाम है वो बहुत पेचीदा है। हम तो बाकी रिटेलर्स जो हैं उनकी टर्नओवर देखें, बाकी कानून में भी है कि अगर 10 करोड़ तक आपकी हो तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसके एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ रिक्वेस्ट भी यही की है कि आप इस जो आपने 2 करोड़ तक रिटेलर्स की टर्नओवर को ले आए हैं, उसको इनिशियली पहले 10 करोड़ पे लाएं। 10 करोड़ के बाद आप इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएं विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो अब हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि रिटेलर्स को डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, हम तो बल्कि इसी बात की बार बार प्रोपोगेट करते हैं कि हर शख्स को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी चाहिए। और देखें, इस वक्त तो वो चीज डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकती, ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और आप अगर आप फाइलर भी नहीं है तो फिर आपके वो जो दूसरे विद होल्डिंग के रेट्स हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। एक बार फिर आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत जारी है। लास्ट 5 लाइंस पढ़ता हूँ इसका पेज 20 ऑफ द जजमेंट। अच्छा, ये जो इंप्यून जजमेंट की बात करें। जी 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 I'll read the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? ये सिर्फ एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान। Are you reading from the quoted portion? Quoted portion जी। अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. जी. 1999 SCMR 1921 है. We are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, ठीक है. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. जी. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party.
It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. Ek second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of Section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 hoga, sir. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. Line 5 पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. G. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? G. Hey, suppose you
give a certain thing. Manifesto. So the government or the political party so far must implement the program of the political party. ये मैनिफेस्टो की बात नहीं तो फिर ये क्या डिक्लेरेटरी डिक्री वो जजमेंट दे रहे कि आपने व्हाटएवर कह दिया अपने मैनिफेस्टो में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे होना ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। होना चाहिए सर, बिकॉज मैनिफेस्टोज हमारी पॉलिटिकल होना चाहिए, इट्स लाइक अ विश ना, कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट। सपोज कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए, फॉर इंस्टेंस आपके मैनिफेस्टो में लिख दें, कोर्ट कांट डायरेक्ट यू, पार्लियामेंट कैन चेंज लॉज दे वांट्स टू। करेक्ट, बिल्कुल सही। एनी अनलॉफुल ऑर्डर which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द jurisdiction is not there. So I would support this judgment. And आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. जी, as a parliamentarian you would not want that to that can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी। अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट के एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया। जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट, उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की, सो ही वाज गोइंग टू बी अवे। तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल। तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन। So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the advocate general, he is somebody else. तो कोर्ट ने कहा कि show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. तो अगर वो prejudice नहीं है तो there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड। Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ें कैसे? जी, वो ये कहते हैं, उनका तो और भी बुनियादी। लेकिन मेरा भी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था। None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या, क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना, कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते। That point is conceded, but nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ। और ये judgments हैं, कुछ judgments मैं quote करना चाहूँगा, your lordship में say points different things, किस point पे, इसी point पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto, कि appointments गलत भी हों तो जो orders पास हो गए हों या actions हो गए हों वो nullify नहीं होते। ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना जी। हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी, इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है। जी जी, अली वो वाला, दो ज़्यादा प्रिंसिपल जजेस के वो जी जी, वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है। तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और
उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माई आर्ग्यूमेंट ऑन दिस। तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना, आई हैव नो इशू। अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू। ठीक, चलें, अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम चिल, बेसिकली चिल। खत्म आई एम खत्म जी। I hope you're not खत्म। अच्छा, वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको। तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप, ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? So this is very serious. Do you know what has happened, or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने. नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, सो दे वर रिटर्न्ड। नो, मगर वो कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, ही मस्ट हैव दैट। कौन सा थाना है? कोसार थाना। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है? इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, and if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing, or he can directly. So it would be better if आप कर लें, ठीक है? तो ठीक, Lordship. Anything else, Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG he won't know anything. Right. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ, you only represent one number के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं। अच्छा, sorry, आप, अच्छा, you wanted to add something, जी? Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing.
One was साहब थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. केस को कुछ we have not taken any मतलब let's चलिए अब केस पे बात करें. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The two places इस्लामाबाद. साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर बात तो मेरी कबूल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं. मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुँचाऊँ. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. And they cannot assemble. खान साहब आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं तो अगर आपकी बात ये बात है तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो. फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहाँ सिक्योरिटी देते हैं. तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं. नहीं मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे. जी 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 चलिए. We still have a duty to चलिए let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब देता हूँ. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की. तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में. सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है. किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. मगर ये देखिए बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर व्हिच यूजुअली इज 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए. वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था. ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी. देखिए we have all played this game, but एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का. कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBI इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन. तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है.
एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता. I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be. If he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. Yes, another party aggrieved can come home. ECP can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. Javed Hashmi का केस तो 5 members are very recent judgments.
One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी। वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का वो। जी सर। हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना चाहें? अच्छा। तो आपने पहले दिन बता दिया था। एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1। There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट। That PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 586। ये वही वाला है, कल वाला है। वही 2 जज। हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं। एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था। इलेक्शन पिटीशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते। ड्रॉप पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू। एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। उसकी कॉपी से आपको दे दी। दे दे। A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. फुल मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है। इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस। हाँ तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन। नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर। दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट। May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है। Another 5 minutes I'll provide. 2 मिनट। पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these 2 cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties. अगर कोई भी उन्होंने order
पास किया कि आपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया। तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस। देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे। सर देखिए, वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, you can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है, सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है, एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी। बिफोर द 18th अमेंडमेंट, before the 18th amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is, नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी, आर्टिकल 17, उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। पढ़ ली 17th prior to 2010, before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही, अब ये खत्म हो गई है। Every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted, yes, under the 18th amendment, but it was brought back by 207 Elections Act. Yes, अब वो इलेक्शन एक्ट के तहत। Why I'm quoting this example, as your lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act, or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of
regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हम साहब उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ECP के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का, वो एक उनके सेक्शंस में है। तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल, एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. Lordship, kindly consider Article 219. So, opposition to मेरी Article 219, the Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो E पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any act 220 भी पढ़ लें. हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. नहीं 220 पढ़िए. आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज़्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं. सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. G. As well. 220 is not with regard to functions, is with regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got... Even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने. हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty
all executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो चिजल अवे योर आर्गुमेंट। नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना। So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं अली जफर साहब, ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ। आप अपने दूर में। Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन में there we have clearly taken the position of, बताएं ना वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? ग्राउंड बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट है, खुद ECP ने लगाए हैं, उन्होंने खुद ही लगाए। हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन क्या कुछ जिक्र नहीं है? जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, दिस इज ग्राउंड W on page 49. 49 page 49 ग्राउंड W हाँ पढ़ लें। और of the first paper book 1. May I read it out? That it is vehemently submitted
that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी, फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात, फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटीशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ECP पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे, बिल्कुल सही नहीं लिया। आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत देते हैं साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है, अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था? जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से? ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ECP ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ECP की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी में कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ECP का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ECP देख नहीं सकती। In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personal.
उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ECP बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो। तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के तो इसका देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज नहीं, वैसे मुझे एक देखें बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारी दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रेम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। वो अब ECP आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है। जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी। अभी भी आर नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स। जी जी सर, ये दिखाएंगे सर। एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखें, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम? उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम, नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ FIR। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहीं ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you.
you can take action against the ECP and say why are you doing this, or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है. लेकिन मैं अर्ज करूँ एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा इलेक्शन कराने की इजाजत दे दी. एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी ANP कर लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस. मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस. आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गई या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. तो वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. नहीं मगर आप लीगल बात करें ना. आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं. जी. So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा. Discrimination, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to. मैं एक दफा contest किया है and that was stolen from me. I had won that. No ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात कर. मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट सबमिशन. The way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mian Nawaz Sharif's case.
yesterday during the course of argument that before the Peshawar High Court we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the ECP's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199 1B 1A तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल। ECP के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर। तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने, आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा। Yes, sir. It says settled law that yes, we seek declaration that their act is. Hey, what is the point? What is the 199 point? जी point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. इसमें clause 2. Declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... Their objection, they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that he doesn't have a jurisdiction and he conceded. This is your lordship's impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. अब बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been यही राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो. आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज.
जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई। राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू कोई डिनाई नहीं कर रहा है, आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। व्हाई ए पर्सन's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that. Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया। देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the. आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, founding member है वो. Sir, founding member if he turns against his party, तो क्या वो party उसको रखने की compulsion है? देखें, he is not running against it. He is saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So
ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है। मैं आपको दो नहीं, कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें, क्योंकि आपने खुद देखी, तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he come a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है। नहीं, परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात। नहीं, आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि ही वाज गिवन शो कॉज नोटिस। दिखा देना वो शो कॉज नोटिस। सर वो तो लगाया हुआ है। कहीं नहीं लगाया। इन एनी केस नहीं, इन एनी केस नहीं दिखाई है हमें। देखिए नहीं, देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस। देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है। आप बेशक, हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते, ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म। वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया। देखिए आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है। वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू। चलें, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना। चैलेंज नॉट अस, yes the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप ज्वाइन against his party. नहीं, आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना। अब बाबर एस अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म। अब ये आपके देखिए, मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे। मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था। He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. तो आपकी पार्टी में आ गए ना? He left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना। अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है। इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब भी वर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं? अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको। क्यों छोड़ें हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled. आप दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आपके कहने से बस काफी है। काफी है पार्टी से नहीं। अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my no? You should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law?
You are a member. Khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party हो फिर को मैं ही deny कर रहा हूँ. तो देखिए self serving argument तो नहीं चलेगा ना. self serving नहीं. ये चलिए खैर आगे बढ़े. We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली. Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is, objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी. Do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस में 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो. आज बाय दिस एक्ट ऑफ ECP दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 7. ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना. ठीक है ना. अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को. इसको आर्टिकल 2(a) के तहत भी देखें ना. हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की. ठीक है, लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें. हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर. 2(a) the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है. सर इसमें ये कहा है wherein the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even ये बात million वाली बात हो गई ना. आगे बढ़ते हैं ना. जी. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. Ji. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as
not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maulvi Tambizuddin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं। मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representative respond number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे। I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं। जी मेरा नाम यूसुफ अली है। एक सेकेंड। साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी। एक मिनट। क्या नाम है? यूसुफ अली। जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे। किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से। बचपन से अच्छी बात है। 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से। पीए एमपीए स्वाबी वन से। स्वाबी वन से। हाँ जी। आप जीते थे हारे थे? जी मैं हारा था। ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है सेंट्रल सेक्रेटरीट। हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में। आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं पीटीआई में 2006। महमूद अहमद खान जी। मैं 2006 से पीटीआई में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद पीटीआई इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आई हैव सब। आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में। मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा। लेकिन देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं। इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी,
आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए, ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं PTI मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ, मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years बैक। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान, तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है, ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना, ठीक जी। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी थी, उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी, तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को।
उस वक्त से आप पार्टी में हैं, कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी छाव में, कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं रखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अब अपने लोकल एरिया में हमने नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टैक्सला और वहाँ से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टैक्सला से हो? टैक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग पीटीआई में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चेक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी काशी से, टोबा टेक सिंह से। यूसी काशी टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए, लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on very short? Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफ़ा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस,
With us, meaning they've passed away. Achha. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left. Party. Ji. Only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman Sahab, Saidullah Khan Niazi Sahab, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active. In the party? I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The President, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव द ट्रैक लाइन ऑफ द Constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात? जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी। ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त। रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट जी। इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर। Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज। पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी। ये आइन जो है 99 में आया और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction on that. ठीक है, तो ये 61 हो गया। और कोई बात? जी, और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है, पेज 63 पे। चलिए खैर, वो तो अलग बात है। और उससे जो किसको शो कॉज दिया है? दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर हामिद खान। क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to mala fide.
whereas you are hereby charged. ठीक है। इसमें जो मैं जो कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to this show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65? ये जी कि let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I. show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी खान साहब में जी उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं. एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं. पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब सिर्फ वो जुमला बता दें. जी मैं उस पर इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी. ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it held that you remember? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए. पेज 71 पे ये 10 से शुरू होता है जी. 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ 73 पे to cut it short. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018 which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की. There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. This question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, writ होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए. बना शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपकी client है, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना. 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014.
First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल वो ये मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस, अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है, ये गलत है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें, तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना जी. बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो देम, शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी, पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231. Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे. बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं. मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है. इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है. वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे. जी बेहतर. अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये करवा. तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें. मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी, 215 को अगर इजाजत दें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई. करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है. जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं. 215. अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है. आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया. आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू. और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं. उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें. आफ्टर
he announces. ये actually क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया point, I will not take more than 30 seconds. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them on our books? जी page 100 of the petition. Page 100. जी. जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है. वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता. मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है. ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती. बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है. अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट. आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी. या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हमें अवॉइड कर रहे हैं चीजें. जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की. उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता. मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी. I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था. ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड. ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं. बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? माय कॉलीग बदर, ही इज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल एंड आल्सो he is not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की. वो एक्चुअली टेल्स मी, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, वो चेक तो कर लें. जी बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है. बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है. उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है. नहीं जी ऐसा नहीं. जो मैं Sorry, वो जरा on a lighter note था. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out, नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया. सर्टिफिकेट में नहीं है. 20 सर्टिफिकेट में कह रहा हूँ. पैराग्राफ 20 में. 20 में बात आ जाए. एक सेकंड, नहीं पेज बता दें पिटीशन का. पेज 38. कैंसिलेशन मेंबरशिप भी बताएं. पैराग्राफ 20 में पढ़ें. That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so.
whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019 and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmitted its result along with all required documents including Form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। Page 50 पे देखेंगे जनाब certificate. Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो certificate है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं पता है किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ। एट पेज 602 पे जनाब फैसला है इसका, इसकी पिटीशन लिखी है वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12, 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटीशन वाज 585 सर। नहीं इसका ये जो 11 इसमें आर यू श्योर? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Aage it's missing language sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate
of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice, hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other points? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify PTI or Pakistan? PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बता देता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. Apologies. I think there's a लास्ट 2 पॉइंट्स सर. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 सेज a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या affiliation एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं, general elections. I've not understood the point. Sorry. It was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. ठीक, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन मैं एक और सवाल में जब Badr was trying to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers,
the commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से। खैर ये तो ओके। और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सब सेक्शन 3 जो है इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सब सेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूँ, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। बाकी अटेंडेंस। और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं। The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर है? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से। पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले। किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है। ओके। जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था। तो he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Eat anything, my lord? You just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes? Chronology first. My lord, this is a chronology which is just being given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी। इस वक्त बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं समाअत सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला अपने दलाइल दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का मुतालबा। फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान मारा गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान, इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में की गई, जो कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसके अंदर इंतहाई मतलूब या हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द जो है वो कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान शामिल है और इसके अलावा उसका साथी साजिद उर्फ सरकंडी जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया है। दूसरी कार्रवाई जो है वो एक मुश्तरका ऑपरेशन था जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने किया डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में, और इस इलाके में होने वाली कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ ही ISPR ने बताया कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों से वेपन्स, एमुनेशन और दीगर जो बारूदी मवाद है वो भी बरामद हुआ। और ये दहशतगर्द जो है न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों हमलों में मुलविस है, बल्कि आम शहरियों के खिलाफ भी मुतअद्दिद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों के अंदर भी इनका हाथ था। और इस वक्त इन दोनों इलाकों के अंदर जो एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके और मकामी आबादियों की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खैर मकदम
किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों का और सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत जारी है। उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट। अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो। Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold an elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे, उस 5 साल के अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई है। कॉपी दे दूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है, गॉट इट माय लॉर्ड। Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see file किधर गई file? Election Commission please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था? जी सर, दो दिए थे। कल दिए थे ना आपने? जी सर। वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में? जी सर। हाँ। वो भी लगे हुए हैं, 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे, वो अलहदा से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है। सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something else? My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again, because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had You read out that portion. Yes, my lord. The citation की दोबारा बताने. जी sir. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted.
My Lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My Lord, from there, we immediately, I have already given your Lordship a chronology. We immediately move to the What is the significance of the chronology? My Lord, the chronology is just to facilitate your Lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your Lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है डॉक्यूमेंट जी we have given वो मार्क कर दीजिएगा I don't agree जी. So this is the chronology, my Lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my Lord. Your Lordship you want knows to the launch reason. an attack or you withdrawing the attack? No, my Lord. My submission is based on this, that the submissions which your Lordship have heard, in order to save your Lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your Lordship. The controversy significantly narrows down. If your Lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your Lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The Lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my Lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My Lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the Commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My Lord, is it my imagination or what is it? My Lord, in a sense it is, and I'll show to your Lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the Commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My Lord, your Lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your Lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your Lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My Lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your Lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है वो पिटिशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन. जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, but under your according to your Lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली.
क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है। मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता। Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो ने पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया। That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है, उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में। That's correct, my lord. इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाचार जारी है, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। Gift University, converting knowledge into practical experience. एक दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक, बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। दिन भर चेहरे की नमी कम होती है और चेहरा मुरझा जाता है, इसलिए ग्लो एंड लवली की नई हाइड्रा ग्लो। इसमें है रोज सीरम जो चिल्ड को अंदर से नमी दे ताकि चेहरे को मिले खिला खिला ग्लो। जब नमी मिले ग्लो खिले। ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक, बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर वक्त पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। रोशनी की बोल न्यूज। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे की तौसीह की थी। पार्टी टिकट जमा कराने के लिए तक वक्त बढ़ाया गया था। आपको हम खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे की तौसीह की थी। पार्टी टिकट जमा कराने के लिए 7 बजे तक का वक्त बढ़ा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म हो गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान ने आज 4:30 बजे तक जो है वो पार्टी टिकट्स वसूल करके इंतखाबी निशानात अलॉट करने थे उम्मीदवारों को और हतमी फहरिस्तें आवेजा करनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ सियासी जमातों के मुतालबे पर इस वक्त में 2.5 घंटे की तौसीह की थी और 7 बजे तक का वक्त दिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पैगाम दिया गया है आरओज को कि 7 बजे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा इस वक्त को, और जिसने भी अभी तक पार्टी टिकट की तफसीलात जमा करा दी है उनको इंतखाब अलॉट करके तो आरओज जो है वो गया था। क्या इसमें मजीद तौसीह की जा सकती है?
जी देखिए, पहले चूंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ताज हैदर ने तहरीरी दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उम्मीदवारों को मजीद वक्त दिया जाए कि वो पार्टी टिकट की डिटेल्स आरओज़ के पास जमा करवा सके, और इसी बिना पर चंद और दीगर सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने एक दफा एक्सटेंशन दी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि इस वक्त में तोसी नहीं की जाएगी, तो अब चूंकि ये फैसला हो चुका है, इसलिए मजीद तोसी का इम्कान नजर नहीं आता। ये बताइएगा कि कितनी जमातों के जो नामजद थे रहनुमाओं ने इससे इस्तेफादा हासिल किया? जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने टिकट्स की जो डिटेल्स हैं वो बड़ी तादाद में जमा नहीं करवाई थी। ज्यादा तो तहरीक इंसाफ के जो चंद उम्मीदवार हैं उन्होंने जो कागजात जमा कराए उनको फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी के भी कई उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी टिकट की डिटेल नहीं जमा करवा सके थे, इसी बिना पर ताज हैदर की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो बेशतर उम्मीदवारों को कल तक की टिकट जारी कर दिए गए थे। आज भी कई उम्मीदवारों को जो है वो नून लीग ने आज भी टिकट जारी किए। बेशतर जमातें जो है वो अपने उम्मीदवारों की डिटेल्स जो है वो जमा करवा चुकी हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि इंतखाबी निशान रोक कर रखा है इलेक्शन कमीशन ने, इसी बिना पर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा था, इस वजह से उनके टिकट्स की डिटेल्स जो है वो उनमें डिले हो गया। लेकिन अगर वो अदालत हुक्म देती है बाद में कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अगर उनको रिलीफ दिया जाता है तो फिर बाद में रिटर्निंग अफसरान उनकी डिटेल्स जमा कर सकते हैं। लेकिन अब मजीद जो है वो तोसी नहीं होगी, और जिन उम्मीदवारों ने टिकट्स जमा अभी तक नहीं करवाए थे वो अब नहीं करवा सकेंगे। जी फहद हमारे साथ रहिएगा। अपने देखने वालों को एक बार फिर से बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे तौसीह की थी। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा करने का वक्त खत्म हो चुका है।